Hello everyone. I hope everybody is fine, okay, at your place. So let me introduce our today's host. He is Vassal Lunawat. He is our student of second year, and doing many campaigns and a lot of activities, in the corporate as well. So Vassal, you are very welcome today to enlighten our students, your juniors specifically, for letting them know that how they can make the LinkedIn profile and what is the utility and the application of all these things. So the dice is yours. You please continue. Yes, sir. So just a minute, sir. Just a minute. Yes. In case any one of you, okay, if you feel to ask something, right, you may please raise your hand. I will unmute you and then and there. Okay. Sir, I would like to talk to. I would like to talk with everyone. I want their cameras on if it's possible. Cameras on if possible, that is possible, but the thing is, I know you know the repercussions, right? Yes. Then somebody make us something that is not supposed to be there, isn't it? All right, sir. So what we can do is that you start with your this chat, and then whenever required, right? So we will mute unmute somebody as required, right? And that we can do. Sure, sir. Well, hello guys. I am Vatsal Lunawat from DME College and co-founder of CourseMyWay.com. And I just want to ask you a question that how many of you use social media tools like Instagram, or like there are so many social media apps just for fun? I would like to know. Yes, Akanksha Sharma. Okay, I have given rights to everyone, okay, to unmute themselves, okay. You won't be able to play your videos, okay, but you can unmute yourself whenever required. Is that be okay, Vassal? Yes, sir. Yes, sir. They would be able to communicate with you in that case, right? Sure, sir. Okay. So guys, I asked a question that how many of you use social media tools like Instagram, for some maybe LinkedIn, anyone, Facebook? Sagar, can you unmute yourself? Please check. Yes, sir. Okay. That's it means that everything is working fine, right? Please go ahead, Vatsal. How many of you are on Instagram? Can anyone tell, please? I am on Instagram. Okay, Sagar, Tanu, Akanksha, and no one else. Only 3 people. Ritik Khurana, okay. Okay. So why do you use Instagram? I mean, can you give a reason? Like it can be anything. It does not need to be professional only. It can be anything for fun or when you feel you are burning out. Anything. Please speak up. Anyone? Can anyone tell why do you use Instagram? The reason can be any. Students, this session is being scheduled for you only, okay. So if you are not communicating, okay, if you are not interacting, then there is no meaning to conduct such session, okay. Believe me, you would be benefited at the end of the session, okay. So try
to engage yourself with the speaker for the day. Okay, though he is your senior, but it doesn't matter. He is working very hard since few years, so you would be definitely getting benefited out of it, isn't it, Vatsal? Yes, right? yes. So just to make a pace with you, and he is trying to mingle with, right, and so that you will feel comfortable. Okay, nothing else. So please cooperate. Okay, first tell me this, leave everything. Tell me in which language do you want me to communicate with you? Is it English, Hindi, or a blend that is English? Tell me that. I'm comfortable with any of this. I just want interactive session, like no English, no Hindi, it doesn't matter. It's like किसमें आप लोग interact करना पसंद करोगे? I would like to tell. I like to speak that language. Any language. Any language, all right. So start करते हैं यार. LinkedIn सबसे पहले मैंने स्टार्ट करा था Facebook in 2015. ऑलराइट, हाँ, उसमें मैंने अपना जो डेट ऑफ बर्थ था वो थोड़ा 1998 का डाल दिया था, बिकॉज आई वाज नॉट सैंक्शनड बाय फेसबुक टू मेक न्यू आईडी. ऑलराइट, आप सबको पता ही होगा. तो वहां पे लाइक ओनली फॉर फन एंड पोस्टिंग पिक्चर्स, एंड देन ऑन इंस्टाग्राम टू just to talking with friends, groups, partners, like that. But then back in 2020, in November 17, I started personal branding. Any of you know what is personal branding? If any of you is following some accounts who are verified, then you must be know. No, like you are management students, right? So आप लोगों को ऐसा लगता होगा कि मैनेजमेंट में सबसे अच्छी फील्ड फाइनेंस या मार्केटिंग, दो ही होती हैं. आईटी बहुत कम बच्चे होते हैं, लाइक 5 to 6% बच्चे होते हैं मैनेजमेंट से जो आईटी की तरफ जाते हैं. ज्यादातर लोग डिजिटल मार्केटिंग की तरफ जाते हैं या ऑफलाइन एडवर्टाइजिंग की तरफ जाते हैं. तो if you are building something like one of the names is like Hrithik Khurana wants to wear Levi's jeans. So अब ऋतिक खुराना को अगर लिवाइस की जीन्स पहननी है, एंड उसको कैसे पता कि ये लिवाइस है? बिकॉज ऑलरेडी मॉल में है, बहुत टाइम से लिवाइस एक ब्रांड बना हुआ है, एंड आई एम नॉट रिमेम्बरिंग द ईयर, बहुत ज्यादा, इट्स लाइक प्लस 57-58 इयर्स, इतना टाइम हो गया है लिवाइस को है. तो अब लिवाइस की जो ब्रांडिंग है वो बहुत ज्यादा अच्छी हुई है. बट इन टूडेज टाइम हम अगर 50 इयर्स तक ये देखेंगे कि हमारा बिजनेस तब जाके फ्लरिश होगा, इट्स नॉट अ गुड थिंग. तो उसके लिए जिसको भी कोई ओनर होता है, जो बिजनेस ओनर है या कोई सीईओ है या एक सिंपल एम्प्लॉय भी अपना ब्रांड बनाता है अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे. और उसके लिए सबसे मेन जो फोकस्ड है उन प्लेटफॉर्म्स के लिए, वो पहला है इंस्टाग्राम, सबसे टॉप पे आता है, क्योंकि मोर देन 500 million people are active on LinkedIn every day. ये रेगुलर का डेटा है इंस्टाग्राम का. राइट, क्या होता है, आप कोई नॉलेज है आपको, आप शेयर करते हो. शेयर करने के साथ साथ आप रेगुलर उसको रीड भी करते हो. लाइक अगर मैं पर्सनल फाइनेंस के बारे में बताता हूँ तो आई रीड पर्सनल फाइनेंस बुक्स. मैं फाइनेंस की भी बुक्स पढ़ता हूँ, पर्सनल फाइनेंस दोनों की बुक्स पढ़ता हूँ, ब्लॉग्स पढ़ता हूँ, वीडियोस देखता हूँ, और अपने एक्सपेरिमेंट्स भी मैं करता रहता हूँ. लाइक अभी मैंने क्रिप्टो में ट्रेड करा था एंड मेरे को लॉस हुआ था 0.5 रुपीज का. मतलब ओवरऑल लॉस मेरे को सिर्फ आधे रुपए का ही हुआ था. तो वो मैंने एज एक्सपीरियंस एक नोटबुक में पूरा लिख लिया कि अच्छा ये एक्सपीरियंस है, ऐसे सबको मेरे को बताना होगा. तो व्हाट इज दिस, मैं कुछ जानता हूँ एंड देन मैं आगे पास ऑन कर रहा हूँ आप सबको. इससे क्या होगा, आप मेरे साथ कनेक्ट कर पाओगे. यू विल बी लाइक, हाँ यार ये बहुत अच्छी चीज बता रहा है, मैं इसको सुन लेता हूँ. सुनते सुनते यू विल फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम और ऑन लिंक्डइन. वहां से आप रेगुलर मेरे साथ इंटरैक्ट करोगे. इससे अब आपके जैसे हजारों और बंदे भी होंगे, राइट? तो जब मैं कोई बिजनेस लॉन्च करूंगा तो मेरे को, चाहे वो प्रोडक्ट है या कोई सर्विस है, तो मुझे उसको प्रमोट करने में किसी एडवर्टाइजिंग एजेंसी का सहारा नहीं लेना पड़ेगा, उनका सपोर्ट नहीं लेना पड़ेगा, बिकॉज मैं ऑलरेडी एक ब्रांड बन चुका हूँ किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, मेरी रीच है. अब मैं आपको सिंपल भाषा में बताऊं, टिकटॉकर, मैं टिकटॉकर नहीं, जो आपने देखा होगा टिकटॉकर्स को आप देखते पहचान लेते हो, भाई ये टिकटॉकर है. तो ऐसी ही पहचान एक बिजनेस लाइन में, एक प्रोफेशनल लाइन में बनती है, प्रोफेशनल वे से, टिकटॉक वाली नहीं, प्रोफेशनल वे से बनती है. वो होती है इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, ये दो प्लेटफॉर्म है. फेसबुक के थ्रू जो भी बंदा डिजिटल मार्केटिंग में जाना चाहता है आप में से, उसके लिए है कि फेसबुक से बहुत ज्यादा आप एड्स रन कर सकते हो. फेसबुक ने एडवर्टाइजिंग एजेंसीज का बिजनेस पूरा बंद कर दिया.
जो ऑफलाइन एडवर्टाइजिंग करते हैं, जो टीवी वगैरह में आते हैं, वो सब अब बहुत 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 कम होता जाएगा उसका मार्केट आने वाले टाइम पे। विद इन 10 to 12 मैक्सिमम 15 ईयर्स के बाद आपको टीवी एड्स बहुत कम दिखेंगे, बिकॉज हर बंदा ऑनलाइन शिफ्ट हो रहा है। यहाँ तक कि मेरे पेरेंट्स, मेरे मम्मा को बिल्कुल भी नॉलेज नहीं था इन सब चीजों का, बट वो टीवी बहुत कम देखती है। शी इज लाइक ऑन नेटफ्लिक्स और प्राइम, और कोई प्रोडक्ट देखना होता है शी यूज इंस्टाग्राम और फेसबुक डायरेक्टली, नो टीवी, वेरी 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 रेयर। So this is the era in which we are living. All right, this is the talk of personal branding. क्या होता है personal branding? आप कुछ करते हो, लोगों को पसंद आता है, they follow you, they try to connect with you, and then you can sell your service or product. This is another thing. But today's session is focused on LinkedIn. That अब हमें लगता है कि यार हम कॉलेज में आ गए हैं, हम 3 साल तक पढ़ाई करेंगे, एंड सेकेंड ईयर के 4th सेमेस्टर में, लाइक 4th सेमेस्टर में कॉलेज हमारे इंटर्नशिप लगवा देगा। बट कॉलेज का काम इंटर्नशिप लगवाना नहीं होता। कॉलेज का काम होता है आपको एजुकेशन प्रोवाइड करना, आपको सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड करना जिससे आपका नॉलेज बढ़ सके। उसके साथ साथ कॉलेज, हमारी जो फैकल्टीज है, हमारे टीचर्स हमेशा एक चीज बोलते हैं कि यार आप नॉवेल्स पढ़ो। मुझे आज भी याद है पूर्वा मैम, इफ यू हैव मेट, ऑफ कोर्स सब्जेक्ट होगा, पूर्वा मैम आपको पढ़ाती होंगी। वो हमेशा कहती है कि यार बुक्स पढ़ो, लोगों से बात करो, अपना नेटवर्क बढ़ा करते जाओ, लिंक्डइन पे एक्टिव रहो। वो हमेशा एक लाइन जरूर बोलती होंगी आपको कि लिंक्डइन पे एक्टिव रहो, और आप में से काफी लोग लिंक्डइन पे अपनी प्रोफाइल बना भी चुके होंगे। बट एक्टिव का मतलब होता है कि आप लिंक्डइन पे रेगुलरली इंटरैक्ट कर रहे हो, ठीक है। तो यार एक्चुअल में लिंक्डइन होता क्या है? व्हाट इज लिंक्डइन? लाइक वी नो इंस्टाग्राम, इंस्टाग्राम एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जिसपे लोग रील्स को स्क्रॉल करते हैं, अपने पोस्ट, अपनी वीडियोस डाल सकते हैं, अपने फोटोज। प्लस अब इंस्टाग्राम का एक पॉजिटिव पॉइंट आ जाता है कि जो लोग ऑनलाइन मार्केटिंग करते हैं ना, लाइक आप में से काफी लोगों को नेटवर्क मार्केटिंग का पता होगा, काफी लोगों को एफिलिएट मार्केटिंग का पता होगा। तो जो उस पर्टिकुलर कंपनी के जो बहुत टॉप बंदे होंगे ना, उनकी हमेशा इंस्टाग्राम पर, एफबी पे ऐसी प्रोफाइल बन सी रखी होगी और वो एड्स रन करते होंगे इंस्टाग्राम पे, वो अपने प्रोडक्ट्स बेचते हैं थ्रू इंस्टाग्राम। सो इंस्टाग्राम पे आप फन भी ले रहे हो, इंस्टाग्राम से आप अपना बिजनेस भी कंडक्ट कर रहे हो। ऑलराइट, नाउ कमिंग ऑन टू व्हाट इज लिंक्डइन। लिंक्डइन एक वर्ल्ड का लार्जेस्ट प्रोफेशनल नेटवर्क है। यहाँ पे आप इंस्टाग्राम की तरह पिक्चर नहीं लगा सकते, यहाँ पे आप इंस्टाग्राम का बायो नहीं लिख सकते। मैं आई विल नॉट रिवील दी बायो's name, and the structure of bio on Instagram is very very less. Well, on LinkedIn it is very high, but you cannot use the structure of bio which you write in on Instagram in the same as on LinkedIn, because it's a professional network. People are not there to see from where you are, they are there to see what you do and how you can actually you be useful to them so that they can pay you and you get the work done for them, right? Plus LinkedIn हम क्यों यूज करें? LinkedIn से आपको सिर्फ जॉब्स नहीं मिलती। लाइक LinkedIn का मोटिव है सिर्फ जॉब्स प्रोवाइड करना नहीं है कि आपने किसी को कांटेक्ट करा या किसी एजेंसी ने आपको आके देखा। लाइक मैंने एक डिजिटल मार्केटिंग, आई विल टेल द होल प्रोसेस, मैं पूरा प्रोसेस बताऊंगा आपको LinkedIn का, जस्ट आई एम एक्सप्लेनिंग। ऑलराइट, मुझे कोई जॉब लेनी है, लाइक लेट्स टेक निहारिका शर्मा। निहारिका शर्मा की कोई कंपनी है और मेरे को उसमें वर्क करना है एज अ व्हाट आई कैन से क्रिप्टो एनालिस्ट, ठीक है। तो मैंने निहारिका शर्मा को रीच आउट करा एंड देन मेरे को निहारिका ने बोला कि ठीक है मैं आपको हायर कर लेती हूँ। उनको मेरा सीवी पसंद आया, उन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया एंड देन मैं हायर हो गया। सिर्फ ये चीज नहीं होती लिंक्डइन पे। लिंक्डइन एक बहुत, मैंने क्या बोला, वर्ल्ड का लार्जेस्ट प्रोफेशनल नेटवर्क है। इसका मतलब सिर्फ इंडिया से नहीं, वर्ल्ड के जितनी भी कंट्रीज हैं जहां जहां लिंक्डइन की रीच है, वहां उस पर्टिकुलर सेक्शन के, हर उस पर्टिकुलर कंट्री के, कॉन्टिनेंट के बहुत सारे लोग आपको दिखेंगे वहां पे। आप उन सबसे कनेक्ट कर सकते हो, राइट। तो आप वहां जॉब ले सकते हो, अपने बिजनेस रिलेशनशिप्स बना सकते हो, अपने बिजनेस कॉन्टैक्ट भी बना सकते हो। यहाँ तक कि जो मैं फर्म रन कर रहा हूँ उसका जो मेरा को फाउंडर है वो मेरे को लिंक्डइन के थ्रू भी मिला था, प्लस वही बंदा मेरे पर्सनल कॉन्टैक्ट्स में किसी का फ्रेंड था। तो ऐसे हुआ था, मतलब लिंक्डइन पे मैं ऑलरेडी उसको देख चुका था। तो यू कैन कनेक्ट कि लिंक्डइन में कितना पावर है। यहाँ तक कि अगर आप किसी कंपनी में प्लेस हो जाते हो, राइट, कल को आप एक एचआर डिपार्टमेंट में हो और सीनियर हो। एचआर, सीनियर जो एचआर होता है ना, वो रिक्रूटिंग के लिए हमेशा हेल्प करता है। जो बिजनेस के ओनर्स होते हैं उनको बहुत ज्यादा, कभी कभी उसको बोर्ड ऑफ मेंबर भी बना दिया जाता है। ऑलराइट, तो
अब अगर वो बंदा को रिक्रूटमेंट करनी है तो कहाँ से करेगा? अब वो जमाना नहीं रहा कि आप एक एक बंदे से पूछते थे। अब होता है कि यार फटाफट से लिंक्डइन खोलो या इंटर्नशाला खोलो या अपना भी एक प्लेटफॉर्म है। जस्ट उसको मैंने सर्च करा था, इट वाज गुड प्लेटफॉर्म बट नॉट दैट मच ग्रेट। सो सपोज लिंक्डइन का एग्जांपल लेते हैं, मैंने फटाफट गया, मैंने लिंक्डइन पे डाला आई नीड अ डिजिटल मार्केटर फॉर अ कंपनी, ऑलराइट, आई सर्च डिजिटल मार्केटिंग और उसमें 3-4 टॉप प्रोफाइल्स आई और मैंने कर लिया सिलेक्ट, उनका इंटरव्यू लिया, जो अच्छा लगा उसको हायर कर। तो रिक्रूटर्स भी इस माइंडसेट चाहता हूँ, क्या सोचते हैं रिक्रूटर हायर करने से पहले, आई विल टेल यू। ऑलराइट, सो नाउ व्हाई शुड वन यूज इट? आपको लिंक्डइन यूज क्यों करना चाहिए? आपको अपना प्रोफाइल क्यों बनाना चाहिए लिंक्डइन पे? फर्स्ट ऑफ ऑल, ऐसा नहीं है कि सिर्फ जॉब सीकर्स को ही लिंक्डइन पे प्रोफाइल बनाना है। आई एम नॉट अ जॉब सीकर, मैंने कभी भी कोई जॉब नहीं करा अभी तक। एक इंटर्नशिप करा था, वो भी एनजीओ में करा था, उसके बाद मैंने पहला स्टार्टअप खोला एंड नाउ आई एम वर्किंग ऑन टू बिल्ड माय फर्स्ट बिजनेस। तो मैं लिंक्डइन का एज अ जॉब सीकर यूज कभी नहीं करता, मैं लिंक्डइन का यूज करता हूँ प्रोफेशनल नेटवर्क बनाने के लिए, अलग अलग लोगों से, अलग अलग कंट्री के लोगों से कनेक्ट करने के लिए, बातें करने के लिए, ताकि जब मुझे कल किसी अपने बिजनेस को एक्सपैंड करना हो उस पर्टिकुलर रीजन में, चाहे वो इंडिया का क्यों ना हो, चाहे बाहर का क्यों ना हो। हितार्थ, आर यू ट्राइंग टू से समथिंग? मे बी नो। तो अगर मुझे कोई नेटवर्क बनाना है उस रीजन में, लाइक लेट्स एग्जांपल आयुष दुबे। अब आयुष दुबे को कर्नाटका में एक फर्म खोलना है दैट इज ऑफ ज्वेलरी, लेट्स से। तो अगर आयुष दुबे का कोई कर्नाटका में एक भी कांटेक्ट नहीं है, कैन यू जस्ट गिव मी अ सेकंड, लेट मी प्लग द चार्जर। जस्ट गिव मी अ सेकंड। या आई एम बैक। सो आई वाज सेइंग कि आयुष दुबे को ज्वेलरी का एक शोरूम खोलना है कर्नाटका में, बट अनफॉर्चुनेटली आयुष का कोई कांटेक्ट नहीं है कर्नाटका। अब whatever the rules and regulations of Karnataka are there, Ayush is not good, or you can say really good with those, because Ayush doesn't know anyone who can make the contact to the senior levels of the Karnataka, or you can say some political networks are needed when you try to open a new business, which is a flourished business in a different region, in a different country. So आप उसके लिए कहाँ से contact करोगे? The first one is LinkedIn, second one is LinkedIn, third one is LinkedIn. Why? Because personal relationships भी कैसे बनेंगे जब आप किसी बंदे को जानते हो, एंड कहाँ मिलेगा वो आपको? लिंक्डइन में मिलेगा। देयर आर टू ऑप्शंस, आप सीधा कर्नाटका जाओ, किसी रैंडम बंदे से बात करो, बट दैट वुड टेक अ लॉट ऑफ योर टाइम एंड यू विल लुक फूल देयर, राइट? सेकंड वन इज सेकंड वन इज लिंक्डइन। आपने सर्च करा नेट पे, हु आर द टॉप प्रोफेशनल्स ऑफ कर्नाटका हु कैन ऑफर दीज सर्विसेज, एंड आपने वन बाय वन सबको कांटेक्ट करा। जहां से आपको लगा कि ये एजेंसी अच्छी है, या ये फर्म अच्छा है, या ये बंदा अच्छा है जो कि मेरा कांटेक्ट आगे करवा सकता है, आपने उससे अपनी बातचीत बना के रखी। तो हेल्प का सॉरी, किसने हेल्प किया आपको? लिंक्डइन ने, राइट? नाउ सर, सर, I guess it's not there, or the net is not working, I guess. So guys, I'm showing you the screen, how LinkedIn looks like, what kind of things you can do on LinkedIn. All right, give me a second. Guys, I'm sharing the screen. All right, now please be really very attentive. All right, क्योंकि आप फर्स्ट ईयर में हो, अब आपका सेकेंड ईयर स्टार्ट होने वाला है, राइट? तो सेकेंड ईयर के फोर्थ सेम में आपको इंटर्नशिप ऑफर होती है कॉलेजेस से भी, बहुत सारी कंपनीज प्लेसमेंट के लिए आती हैं। एंड अगर आपको इंटर्नशिप चाहिए, बट उसके लिए आपको अपना सीवी अच्छा बिल्ड करना है, प्लस अगर आपकी लिंक्डइन पे प्रोफाइल अच्छी होती है ना, तो दे कंसिडर दिस एज अ रियली पॉजिटिव पॉइंट, एंड वो ये भी सोचते हैं कि आप करंट ट्रेंड के हिसाब से के साथ चलते हो, राइट? सो नाउ लुक वेरी केयरफुली। Yeah,
Are you able to share this? No. Are you able to see it, guys? Yes, yes. All right. Yes, sir. So this is CMV. This is my firm's name, Course My Way. I'll show you what is it. Okay. Yeah. So we are here on LinkedIn now. All right. This is how LinkedIn looks like. This is. Okay. This is me, Vatsal Lunawat, and my network. So in my network, what do you see? Like I have sent a connection request to Arushi. Now what did she did? What she must have done. I have notifications. Let me see. Is there anyone? Yeah. Okay, not that one. All right. I have a connection. Let's say I want to connect. Wait, let me show you my net connections. All right, she's Arushi Dalmia, and I'm connecting with her. I sent a connection request. Now, what I will actually do, I will hop on her profile, Arushi Dalmia. The first thing I will do is click on her profile picture. Second one is connections, but it doesn't matter much. The third one is, what is Arushi's top skill? This is a quiz for me, but I do not know her, so I will ignore this. Yes, about. This is the section which I am gonna talk about. What is about? In Instagram, you can say it as a bio, but on LinkedIn, this is something which is very, very important for you all. And why? If I'm a recruiter, first thing I'm gonna do is to connect. I will see the name. Second, sorry, not. Am I audible now? People? Yes, sir. Please don't say me, sir. I'm your senior. Just give me a second. There was a glitch in my connection. Yeah, so we are here. I'm gonna start again. No worries. So first of all, I will try to discuss two things with you. All right. I'm gonna discuss two things with you. The first one is the types of profiles on LinkedIn. Let me show you what am I talking about. If you go into my profile, and you will see here I have 932 connections. It's gonna tell me for premium. Give me a second. Yeah, so I'm sorry. Yeah, here it is. See, try premium for free. What does this mean? So there are three versions of LinkedIn. First one is free version, which I use. Second one is the premium version, and the third one is the Sales Navigator version. I will not discuss the Sales Navigator version because you all are not required to know unless you are a digital marketer and you have some leads. Like हिंदी भाषा में अगर मैं बोलूं तो नेटवर्क मार्केटिंग या एफिलिएट मार्केटिंग करते हैं या कोई एजेंसी आप रन करते हैं नेटवर्क मार्केटिंग की, तो उसमें आपको ना क्लाइंट्स चाहिए, तो क्लाइंट्स को इन डिजिटल मार्केटिंग वी से लीड्स. ऑलराइट, तो इफ यू आर वर्किंग फॉर सम एजेंसी और यू ऑलरेडी ओन एन एजेंसी जहां पे आपको लीड्स की बहुत जरूरत होती है, देन यू मस्ट ट्राई सेल्स नेविगेटर ऑफ लिंक्डइन. लेट मी शो यू दिस वन. Sales Navigator. Yeah, Sales Navigator LinkedIn. All right. Yeah, this is Sales Navigator.
अल्टीमेट सेल्स टूल। सो नेम से आपको पता चल रहा है कि सेलिंग के लिए बहुत ज्यादा है। अब कौन सी तरह की सेलिंग करनी है हमें यार? Selling here selling here means कि if you have any product, any service which you want to sell, but that is online, alright? Offline है, but आपका main काम online से होता है। आपको जो लोग हैं आपको online से ही मिल सकते हैं। तो the first one is Instagram and the second one is LinkedIn. Sales Navigator आपको तभी use करना चाहिए जब when you have, yeah, this is Sales Navigator. See, for team up to 10 reps, this is not for you. This is not for you. All right, this is something which which is not need to be discussed in today's session, right? Second one is the premium one. So there are some features in premium which the free versions cannot see. The first one which I'm about to tell is this. कितना अच्छा लगता है ना देख के कि 145 लोगों ने हमारी प्रोफाइल व्यू करी है। एंड अगर इसमें मैं जाके देखता हूँ, मेरा इंक्रीमेंट अभी कुछ नहीं हुआ, 0% since last week, but here you can see the magic. I can see only 1, 2 and 3. But why not my 145? Because it is telling me unlock the rest of your profile views with premium. So this is the first feature that is missed in the free version that you cannot see. You can see the number, but you cannot see the names of those persons, the profile pictures of those persons who saw your profile. All right. This is the first thing which you cannot do if you are a free, if you have a free version. The second one is InMail. How many of you open Gmail? Can anyone tell me that how many or I can say how many of you use Gmail? Anyone? Gmail कोई मतलब कोई यूज करता है Gmail यहाँ पे? Anyone? No, ऋतिक खुराना. ओके, तो कितनी बार खोलते हो एक दिन में अपने Gmail को? और एक बार। रेगुलरली? हाँ, डेली। माय गॉड, अमेजिंग यार, क्लैप कर दो। मैं तो कर रहा हूँ इसके लिए क्योंकि दिस इज समथिंग which is not there in India. People open their Gmail for like once in 15 days or once in 10 days. But really good, Ritik Khurana. Keep it up. Anyone else जो कि Gmail चाहे महीने में एक बार खोलते हो, but please tell yes कि मैं खोलता हूँ महीने में एक बार, तो मैं खोल ही लेता हूँ। निपुण, कितनी बार खोलते हो निपुण? किरत, ओके ओके सर 1-2 दिन में खोल लेता हूँ। 1-2 दिन में खोल लेते हो। तनु अरोड़ा, किरत, आप कितनी बार क्या फ्रीक्वेंसी है मतलब आप लोगों का Gmail खोलने का? मतलब आप लोगों को पता होगा ना कि Gmail क्या है, जहाँ पे आप ईमेल्स भेज सकते हो। डेली डेली, 1 से वेरी 2 ग्रेट, बार। गुड, रियली गुड, क्लैप फॉर यू। तो जितने भी बंदे जो बोल नहीं रहे, बट जो लोग एक बार खोल ही लेते हैं अपने दिन में, उन सबके लिए मैं क्लैप करना चाहता हूँ। आपका फ्यूचर एक ब्राइट लेवल पे है, क्योंकि Gmail जो है ना वो बहुत बहुत पावरफुल टूल है। तो हम Gmail पे क्या करते हैं, हम गए Gmail पे, टू होता है, पहला टू का सेक्शन आता है, हमने ईमेल आईडी डाली, उसके बाद सब्जेक्ट आता है और फिर हमारा जो भी हमको मैसेज सेंड करना होता है, राइट, सीसी और वो भी आता है, बट वो डिस्कस नहीं करेंगे अभी। तो हमने मैसेज टाइप करा, भेज दिया, ये होता है Gmail का काम। तो लिंक्डइन में भी एक होता है इन मेल्स, लेट मी टाइप दिस इन चार्ट, ऐसा होता है इन मेल्स। स्क्रीन प्रेजेंट कर दो अपनी, आपकी स्क्रीन प्रेजेंट नहीं हो रही। ओके, अब हो रही है? नो नो, नाउ, यस। ओके, सॉरी। तो अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ ना, ट्राई प्रीमियम फॉर फ्री, आई प्रीमियम फॉर माय एज अ पार्ट ऑफ माय जॉब, तो दो, अरे यार ये तो पूरा वही ले लेगा, जस्ट गिव मी अ सेकंड। So can you see this in mails in the chat box? चैट दिख रही है आपको यहाँ पे? इसमें मैंने emails लिखा है। Anyone?
Am I audible? Yes, sir. Yeah. Yeah, please, sir, मत बोलो. Just call me Vatsal. You can call me Vatsal. You are 19, I am 20. That's the only difference. So Sir, this I'm is, also 20. sorry. Sir, I'm also 20. Come on, Naveed. Right. So there is InMails, right? So InMails आपको दिख रहा होगा यहाँ पे chat box में, right? Yes. Yeah. So there is Gmail, right? This is G and this is Mail. That is Google Mail. All right. This is InMail. That is LinkedIn Mail. It is nothing else but LinkedIn Mail. तो प्रीमियम वर्जन में ना LinkedIn Mails आता है. अब LinkedIn Mail सिर्फ आपको 15 मिलते हैं, राइट? अब इसमें क्या होता है कि यार अब बहुत बहुत ही कोई लाइक हाईली प्रोफेशनल बंदा जो कि Gmail यूज ही नहीं करता, उसको सिर्फ और सिर्फ LinkedIn Mail का यूज करना है, तब आपको प्रीमियम लेने की जरूरत पड़ती है. इफ यू आर वर्किंग इन एन एजेंसी जहां पे आपको क्लाइंट से कनेक्ट करना पड़ता है, बट वो जीमेल पे नहीं है, व्हाट्सएप पे सही से प्रोफेशनल टॉक नहीं हो सकती, राइट? देन लिंक्डइन ने निकाला लिंक्डइन मेल्स, व्हिच इज एब्सोल्युटली रबिश एंड यूजलेस, बिकॉज out of 100 only one use InMails. So that is the ratio. All right, this is the second thing. And the third thing is analytics. इंस्टाग्राम पे जो क्रिएटर प्रोफाइल होता है, इंस्टाग्राम पे ना 3 प्रोफाइल होते हैं. फर्स्ट वन इज अ पर्सनल प्रोफाइल. पर्सनल प्रोफाइल उसमें क्या होता है कि लाइक अगर आप किसी को रिक्वेस्ट भेजते हो तो वहां पे फॉलो का बटन लिखा आता है, इट शोज दिस इज अ प्राइवेट अकाउंट. दैट्स द फर्स्ट. सेकंड वन इज अ क्रिएटर अकाउंट जो कि क्रिएटर्स होते हैं लाइक मी. थर्ड वन इज अ बिजनेस अकाउंट जो कि मैं यूज करता हूँ. मैं क्रिएटर अकाउंट यूज नहीं करता. बिजनेस अकाउंट की एनालिटिक्स ना बहुत वास्ट होती है. लाइक आप लोगों में से सारे कॉमर्स बैकग्राउंड के हो ना? एक बार ये बता दो. Yes, sir. Yes. या सो अब कॉमर्स में आपने पढ़ा होगा, एक स्टैटिस्टिक्स सब्जेक्ट पढ़ा होगा 11th में या 12th में. उसमें क्या होता है कि यार अच्छी तरीके से मीडियन मोड का एकदम डीप तक घुस गए थे वो लोग. फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जितना मेरे को याद आ रहा है, उसमें बहुत अलग अलग तरीके की एनालिसिस कर सकते थे आप. तो लिंक्डइन पे भी ऐसा ही होता है. अब अगर मेरी ये प्रोफाइल है, मैं अपनी प्रोफाइल पे गया, ऑलराइट. अब मेरा जो इसमें एनालिसिस का पार्ट आएगा ना, जस्ट सी दैट, बहुत ये है मेरा डैशबोर्ड. ऑलराइट, ये डैशबोर्ड है. अब इसमें क्या एनालिसिस यार, कुछ भी नहीं है इसमें, तो सिर्फ इतना ही है. लेकिन जो एक्चुअल में मेरा एनालिसिस का सिर्फ यही पार्ट है, इतना सा, ये दिस वन, ओनली दिस बॉक्स, नथिंग एल्स. लेकिन जिसके पास प्रीमियम वर्जन है उसको बहुत सारा डेटा मिलता है एनालाइज करने के लिए. कितने बंदों ने प्रोफाइल व्यू करी, कौन कौन से टाइम पे व्यू करी, सर्च अपीयरेंसेस. लेट मी शो यू दिस सर्च अपीयरेंसेस. या अब तो सॉफ्टवेयर, कुछ सॉफ्टवेयर के बंदे हैं, कुछ इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो मैनेजर्स है, कुछ प्रोजेक्ट मैनेजर है, कुछ सेल्स पर्सन है, कुछ रिसर्च फेलोज है. उन्होंने क्या करा, मेरे को सर्च करा, तो मेरे को ये चीज पता चल गया कि कौन सी कैटेगरी के पीपल मेरे को सर्च कर रहे हैं लिंक्डइन पे. ऑलराइट, बट एनालिटिक्स का जो फीचर है प्रीमियम में, उसमें इट्स लाइक अ होम टू यू वेयर एवरीथिंग इज अवेलेबल, एंड उसका यूज करके ना अपनी प्रोफाइल को बहुत अच्छा बना सकते हो. ऑलराइट, द थर्ड थिंग इज लिंक्डइन लर्निंग. लाइक यू नो, आपने सुना होगा यूडेमी. यूडेमी आप में से कितने जनों ने सुना है? यूडेमी पता है किसी को? नहीं पता तो बोल दो कि नहीं पता है, आई विल टेल यू. नो. नो, ऑलराइट, गुड. लिंक्डइन, सॉरी, यूडेमी क्या है? यूडेमी एक प्लेटफॉर्म है जहां पे आपको ना कोर्सेज मिल जाते हैं 300 रुपए के, 400 रुपए के, 500 रुपए के. एंड आई डू नॉट एडवाइज यू टू बाय, बिकॉज उसके कोर्सेज ना काफी पुराने होते हैं, 2017 के डले हुए हैं, 18 के डले हुए हैं, 19 के, 20 के डले हुए हैं. 20 का तो चलो फिर ठीक है, 19 वाला भी पुराना हो जाता है, क्योंकि हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे ना चेंजेस होते जा रहे हैं. आप लोगों को पता होगा कि जब टिकटॉक बैन हुआ था ना, उसके बाद इंस्टाग्राम पे रील्स आई थी, उससे पहले नहीं थी. तो चेंजेस होते रहते हैं. तो स्ट्रैटेजी का जो बनाना, जो स्ट्रैटेजीज के थ्रू जिस तरीके से कोर्सेज सेल करते हैं ना, वो भी पुरानी हो चुकी है. प्लस जो कोर्स का कंटेंट है
लाइक अगर मैं बात करता हूँ कि मैं पर्सनल फाइनेंस के बारे में पढ़ाता हूँ, तो पर्सनल फाइनेंस की जो वीडियोस उन्होंने बनाई होगी अपने उस टाइम के अकॉर्डिंग 2017-18 के अकॉर्डिंग, बट अब 2021 स्टार्ट हो गया, इन्फ्लेशन ऑल टाइम हाई पे था जस्ट कुछ टाइम पहले, अभी कम हुआ है थोड़ा थोड़ा, बट आपने देखा होगा कि एडिबल ऑयल सॉरी हाँ कुकिंग गैस, एडिबल ऑयल्स और पेट्रोल पंप के जो प्राइस है बहुत ज्यादा हो गए, राइट? तो क्यों हो रहा है? ये इन्फ्लेशन की वजह से होता है, राइट? कुछ और भी ड्राइविंग फैक्टर्स होते हैं इसके। तो उन सब चीजों को बताने के लिए अब आप 2017 का कोर्स तो परचेज नहीं कर सकते क्योंकि उसमें से कुछ नहीं होगा, दैट्स व्हाई। तो लिंक्डइन क्या है? एक कोर्स प्रोवाइडर प्लेटफॉर्म है यहाँ पे, प्लस आप अपने कोर्सेज बना के भी डाल सकते हो। दिस इज यूडेमी, नॉट लिंक्डइन। सॉरी, यूडेमी एक प्लेटफॉर्म है। यूडेमी की तरह और भी वेबसाइट्स हैं जो कि आपको कोर्सेज प्रोवाइड करती हैं, ठीक है? ऑलराइट, सो या तो लिंक्डइन का भी ना एक अपना तरीका है, या लिंक्डइन भी एक उसका भी एक लर्निंग यू कैन से प्रोग्राम है, एक वेबसाइट है दैट इज lynda.com, LYNDAA। लिंक्डइन ने क्या करा? उसको परचेज कर लिया, एक्वायर कर लिया। अगर मैं मैनेजमेंट या फाइनेंस की टर्म्स में बोलूं, थोड़ी प्रोफेशनल टर्म्स में बात करेंगे यार, मर्जर और एक्विजिशन दो चीजें होती है। मर्जर होता है कि दोनों कंपनी आपस में मिलती हैं, एक्विजिशन होता है कि मैंने एक्वायर कर लिया, अभी हाथ मेरा हो गया, दिस इज एक्विजिशन। तो लिंक्डइन ने एक्वायर करा लिंडा को, खरीद लिया लिंडा को। अब वो क्या करता है? लिंक्डइन तो खाली प्रोफेशनल नेटवर्क था, उसके थ्रू ना वो कोर्सेज भी बेचता है, लाइक दिस। लेट मी शो यू। या यहाँ पे देखो, जहाँ पे मेरा जहाँ पे ये देखो पॉपअप आ रहा है वीडियो पे, राइट? दिख रहा है पॉपअप आपको? ये दिख रहा है? Yes, sir. या तो यहाँ पे लिखा हुआ है लर्निंग, दे आर सेइंग ऐड न्यू स्किल्स विद दीज कोर्सेज फ्री फॉर 24 आवर्स। एंड कौन कौन से कोर्सेज हैं? एक्सेल एसेंशियल ट्रेनिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग टिप्स। तो व्हाट इज दिस? दिस इज समथिंग यार कि ये लोग क्या कर रहे हैं, इन्होंने अपना वो प्लेटफॉर्म खरीदा लिंक्डइन का, एंड आप लिंडा का, एंड आप लोगों को कोर्सेज भी बेच रहे हैं यहाँ पे। और इसके कोर्सेज मस्त होते हैं, मतलब लिंक्डइन लिंडा के जो कोर्सेज हैं थोड़ा सा हाई लेते हैं चार्जेस, बट दोज आर गुड, but still I do not recommend to you कि आप courses buy करो, because I'll tell you a website जहाँ पे courses, आपको बहुत सारे courses, आप में से काफी लोगों के सपने होंगे MBA करने के। आप में से कितने जनों का MBA करनी है, पहले ये बता दो। कोई भी नहीं? नो वन? ऋतिक खुराना, ऑलराइट। सो इफ यू वांट टू डू MBA, तो उसके लिए आपको, अब काफी सारे लोग होते हैं, हम कैट देंगे, कुछ लोग होते हैं हम जीमैट देंगे, कुछ आइल्स के होते हैं, कुछ टॉफेल के होते हैं, कुछ GRE के होते हैं। तो बाकी ये जो 4 कैटेगरी थी, बाहर जाने के लिए, कैट होता है इंडिया, राइट? तो आपको बाहर जाना है। अब बाहर आप कैसे कॉन्टैक्ट्स बिल्ड करोगे? इंडिया से ही कॉन्टैक्ट कैसे बिल्ड करके चलोगे? लिंक्डइन इज द प्लेटफॉर्म, ऑलराइट? इंडिया के लिए अगर IIMs के लोगों के साथ कनेक्ट करना है, IIMs के एल्यूमिनस के साथ बात करना है, कैसे कनेक्ट करोगे? लिंक्डइन इज द प्लेटफॉर्म। So this is why LinkedIn is really powerful, alright? तो एक वेबसाइट है जहाँ पे ना आपको बहुत सारे कोर्सेज फ्री मिल जाते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट। कोर्सेज तो फ्री मिलते हैं, बट उसकी जो सर्टिफिकेशन होती है, कुछ में पेड है, कुछ में फ्री है, ऑलराइट? वेबसाइट में आपको इस सेशन के एंड में बताऊंगा। अब हम बात करते हैं, यस, आई वांट टू शो यू समथिंग। दिस इज माय फेवरेट पर्सन, नील पटेल। He is a very good digital marketer, all right? And एक और चीज मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे। Give me 1 second. Let me type the name. Oh, इसमें भी नहीं है। Just give me a second. ये Melinda Gates, Melinda French Gates. So yeah, so here you can see, yeah, ये आपको बिल गेट्स दिख रहे हैं यहाँ पे, गाइस, बिल गेट्स दिख रहे हैं यहाँ पे आपको? Yes, sir. यहाँ तो इंस्टाग्राम पे आप लोगों में से किसी ने वो ब्लू टिक देखा है प्रोफाइल पे?
अगर आप यस तो वो जो लिंक्डइन इंस्टाग्राम में जो ब्लू टिक देते हैं उसका क्या मतलब होता है कि बंदा ऑथेंटिक है, मतलब यू कैन ट्रस्ट दैट पर्सन रिगार्डलेस ऑफ द कंटेंट ही और शी इज पोस्टिंग, बट यू कैन ट्रस्ट दैट पर्सन। तो लिंक्डइन पे ना ये IN बना हुआ आ जाता है, दिस इज काइंड ऑफ यू कैन से वेरिफिकेशन, बट दिस इज एक्चुअली नॉट अ वेरिफिकेशन, दिस इज जस्ट अ सिंबल फ्रॉम लिंक्डइन टू शो दैट यू आर अ प्रीमियम प्रोफाइल। मतलब आपका जो आप जो बंदे हो बहुत प्रीमियम बंदे हो, कहने का मतलब ये है इसका। एक ये होता है, एक ये भी ऐसा ये मेरे को कलर नहीं पता, ये डार्क ऑरेंज है कौन सा है, इसमें भी आता है और दोनों में आता है, बट ये मेरी प्रोफाइल पे नहीं दिख रहा है यार। या आई नो आई एम नॉट अ नोटेबल पर्सनैलिटी राइट नाउ, बट स्टिल इसलिए बिकॉज मेरे पास प्रीमियम नहीं है। अब ये जो होता है ना ये सिर्फ प्रीमियम लोगों के पास आता है। तो लेट मी टेल यू, इफ यू आर अ एम्प्लॉय, सॉरी इफ यू आर एन एम्प्लॉय, या अगर आप एम्प्लॉय हो या आप बिजनेस ओनर हो एंड यू हैव मनी टू अफोर्ड द प्रीमियम वर्जन विच इज अबाउट अप्रोक्सीमेटली $30 per month, and I guess it's like not very costly. Alright, and ये जो चीजें यहाँ पे आपको पैसा खर्च करने की नीड होती है लिंक्डइन पे, बट अभी नहीं खर्चना कि मैंने बोल दिया और आपने घर पे परचेज कर लिया अभी के अभी नहीं। पहले आप लिंक्डइन पे अपनी नॉर्मल प्रोफाइल बनाओ। कैसे? नॉर्मली लिंक्डइन खोलो, उसमें आएगा 2 ऑप्शन आते हैं, साइन अप, रजिस्टर। रजिस्टर पे क्लिक करो, सारी डिटेल्स जैसे इंस्टाग्राम पे भरते थे वैसी सारी डिटेल्स आपको लिंक्डइन पे भरनी है एंड योर प्रोफाइल विल बी रेडी। अब प्रोफाइल तो आपने बना लिया, प्रोफाइल में करना क्या क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। ऑलराइट, अब उस पे आते हैं कि हमें प्रोफाइल में क्या क्या करना है। तो यार फर्स्ट थिंग फर्स्ट इज नावेद, डू यू वांट टू से समथिंग? नो सर। ओके, तो अब मेरी प्रोफाइल सपोज बन चुकी है, अब मेरे को क्या करना है? सबसे पहली चीज जो मेरे को करनी है दैट इज माय प्रोफाइल पिक्चर, जो कि आप क्या डीपी कहते हो इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, सॉरी इंस्टाग्राम की तो प्रोफाइल पिक्चर होती है, व्हाट्सएप की डीपी होती है, लिंक्डइन पे इसको बोलते हैं हेड शॉट, HEAD, हेड शॉट, 6 मारा ना, शॉट, हेड शॉट। तो ये जो है दिस इज माय हेड शॉट। अगर कोई भी इंसान, यार ये आपका फर्स्ट इंप्रेशन होगा, मैं रिक्रूटिंग करूंगा या कोई भी ओनर रिक्रूटिंग करे, तो सबसे पहले एक ही चीज देखेगा, आपकी प्रोफाइल पिक्चर कैसी है, आपका हेडशॉट कैसा है। और हेडशॉट इसमें आप इंस्टाग्राम वाले नहीं लगानी प्रोफाइल पिक्चर की, लाइक कोई भी फोन हो गया, लाइक कोई फोन हो गया, आपने फोन ऐसे मिरर के सामने आप पकड़ के ऐसे फोटो खींच रहे हो बहुत एकदम मस्ती में, वो नहीं, वो सब चीजें नहीं करनी लिंक्डइन में। लिंक्डइन पे कैसी कहां तक की प्रोफाइल अच्छी लगती है, लेट मी शो यू। एक मेरी प्रोफाइल की तरह आप ले सकते हो। सेकंड वन इज दिस पर्सन, नील पटेल, ही इज अ वेरी गुड डिजिटल मार्केटर ऑल ओवर द वर्ल्ड, ही इज द बेस्ट डिजिटल मार्केटर। सी हिज प्रोफाइल, बहुत अमेजिंग है, लाइक इट्स वेरी कूल, इट्स रियली लुकिंग वेरी कूल। अब आपको इसके लिए सुंदर होने की जरूरत नहीं है, या उसके लिए आपको बियर्ड रखने की जरूरत नहीं है, या उसके लिए आपको व्हाट्स दैट, I'm just forgetting the name, या जॉलाइन रखने की जरूरत नहीं है उसके लिए। सिंपल फेस आपका, और इतना, सिर्फ इतना। Are you able to see my hand? This one here. yes या सो यहाँ तक आपको प्रोफाइल पिक करनी है। बैकग्राउंड आपको कुछ भी हो सकता है, मैं आपको वेबसाइट, मैं जो पॉइंट्स बता रहा हूँ ना उसको नोट करते जाओ। मैंने पीपीटी नहीं बनाया बिकॉज पीपीटी इज लिटरली अ बोरिंग कंसेप्ट टू टीच एनीवन। और पीपीटी अगर मैं बनाता तो आप लोग सो जाते हैं अभी तक। ऑलराइट, सो मैं पूरा आपको प्रैक्टिकली सब करके दिखाऊंगा। द फर्स्ट थिंग इज नोट, you need to put a heading, tips on profile building or anything, or you can say for things which I have to make very clear on LinkedIn. First one is a profile picture, in bracket write head shot. All right, so headshot कितना होना चाहिए यार? इतना, एटलीस्ट इतना होना चाहिए बस। बैकग्राउंड आपका कुछ भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। बैकग्राउंड आई विल टेल यू कि बैकग्राउंड कैसे चेंज करना है, सिंपल सी वेबसाइट है, मैं बता दूंगा आपको। आई एम गोना गिव लॉट ऑफ टिप्स, सो प्लीज बी सीरियस। ऑलराइट, अच्छा अभी प्रोफाइल में ये हेडशॉट या प्रोफाइल पिक्चर इतना मैटर क्यों करता है? क्योंकि ऑफ कोर्स ही बात है, आपको मेरे काम से मतलब रखो, आप मेरी शक्ल क्यों देख रहे हो, मेरी फोटो क्यों देख रहे हो? लेट मी टेल यू वन थिंग, कि लोग बोलते हैं कि यार आपको ना अगर आप कहीं जा रहे हो तो आपको कपड़ों पे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है, आपका वर्क ही बोलता है। इट्स ट्रू इन 2% ऑफ केसेस, 90% ऑफ केसेस में आपके क्लोथ्स बहुत ज्यादा मैटर करते हैं। दे आर नॉट, मतलब जरूरी नहीं है कि आपको ब्रांड्स के क्लोथ्स पहने हैं, बट यू शुड बी
वेल ड्रेस्ड, आपका ड्रेसिंग सेंस अच्छा होना चाहिए, ऑलराइट। सेकंड थिंग कि जो प्रोफाइल पिक्चर होता है ना, इट्स लुक, ये बहुत अच्छी लग रही है मेरे को नील पटेल की प्रोफाइल। मैं डायरेक्टली इनको मैसेज करने वाला हूँ दैट आई एम लुकिंग फॉर दिस। मैं देखूंगा पहले इनकी क्या क्या चीजें हैं, उसके बाद अगर मेरी प्रोफाइल पे सूट करते हैं तो मैं इनको मैसेज कर दूंगा कि मैं इस प्रोफाइल के लिए वर्क ढूंढ रहा हूँ, मुझे इस तरीके का काम चाहिए, कैन यू डू दैट फॉर मी और नॉट। प्रोफाइल अगर अच्छी नहीं है ना, देयर इज 99% चांस कि वो स्किप कर देंगे प्रोफाइल को। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द कलर ऑफ योर फेस, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट सिंपल प्रोफाइल होनी चाहिए आपकी, ऑलराइट। एंड इफ यू वांट कि मैं आपको एक शो करूं प्रूफ दी, से वैभव सिसिंटी, this is the person that who is not literally in Indian language gora person, he is not, but still the profile is really good looking. So you do not have to go on the face of the color of your face कि यार मैं काला हूं तो मेरी प्रोफाइल अच्छी नहीं बन सकती। प्लीज ये सब नहीं सोचना आपको, नॉर्मल सी इतनी यहाँ तक की प्रोफाइल लो, पीछे कोई भी बैकग्राउंड है कोई दिक्कत नहीं है, I'll tell you how to remove the background and add another one, simple, that's it. The first thing is profile. Is it clear guys? Is profile point clear? Yes. Yes, all right. इसमें आपको ना सेल्फीज नहीं लेनी कि यार मैं ऐसे सेल्फी ले रहा हूँ या मैं मिरर के सामने ऐसे सेल्फी ले रहा हूँ, मतलब समझ जाओ जो आईफोन वाले करते हैं, मैं उसी चीज की बात कर रहा हूँ। वो सब नहीं चाहिए हमें यहाँ पे, हमें सिंपल सी प्रोफाइल चाहिए आपकी हंसते हुए, ओके। सेकेंड वन, यार एक और चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ, सेकेंड पॉइंट लिख लेना, इसको कहते हैं हेडलाइन, हम कहते हैं हेडलाइन, ओके। व्हाट इज हेडलाइन? दिस इज हेडलाइन, ये इतना, पर्सनल फाइनेंस एंड क्रिप्टो करेंसी, एंटरप्रेन्योर, बिजनेस एंड स्टार्टअप्स, सेल्फ डेवलपमेंट, फाउंडर एंड सीईओ, पोस्ट माय वे। अब ये क्या है? व्हाट इज दिस? इंस्टाग्राम पे बायो तो हमारी अबाउट हो गई, ये एक तरीके का एडिशनल फीचर होता है। अच्छा क्यों काम आता है यार? मेरे को एक जॉब सर्च करना है दैट इज ऑफ डिजिटल मार्केटर, मैं एक बंदा हूं, मेरे को कोर्स माय वे के लिए एक डिजिटल मार्केटर चाहिए, तो मैं लिंक्डइन के यहाँ पे सर्च में गया और मैंने डाल दिया यार डिजिटल मार्केटर, डिजिटल मार्केटिंग, ऑलराइट। मैंने डाला और मैं यहाँ पे सिलेक्ट करूंगा सर्विसेज की जगह आई वांट पीपल, या सो द फर्स्ट प्रोफाइल इज आथिरा नायर, नीरज पुंज, सॉरी नीरर पुंज, फातिमा शेख, दिवेश कुमार। These are the 4 profiles। प्रोफाइल आ कैसे गई यहाँ पे मेरे को समझ नहीं आया, बिकॉज आपने देखो यहाँ देखो डिजिटल मार्केटिंग लिखा हुआ है, इधर लिखा हुआ है डिजिटल मार्केटिंग, मार्केटिंग, ऑनलाइन मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव, डिजिटल मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव। तो ये उन्होंने क्यों लिखा? बिकॉज दे वर्क इन दिस नीश। तो इफ यू, आप लोगों में से अगर डिजिटल मार्केटिंग में एक पार्ट होता है दैट इज सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, अगर आप में से किसी ने सुना होगा, उसका क्या मतलब होता है कि आपका जो सर्च, कोई बंदा सर्च करे ना, तो आपकी प्रोफाइल इतनी ऑप्टिमाइज हो जानी चाहिए कि आप सर्च करते सबसे पहले आपका नाम आ जाए। आई विल रिपीट इट अगेन, मुझे सर्च करना है डिजिटल मार्केटिंग और आप चाहते हो कि आपकी प्रोफाइल पहले नंबर पे शो हो, उसके लिए आपको अपनी प्रोफाइल को इस तरीके से ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा कि जब मैं डिजिटल मार्केटिंग डालूं तो आपका प्रोफाइल सबसे पहले शो जाए। इसको कहते हैं हम SEO, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। आई एम नॉट गुड एट डिजिटल मार्केटिंग थिंग्स, इट इज जस्ट समथिंग व्हिच आई नो, सो आई एम टेलिंग यू, ऑलराइट। सो या, तो अब ये क्यों बनाया? ये इसलिए बनाया कि कोई भी सर्च करे ना तो मैं उसको दिख जाऊं कि मैं हूं यहाँ पे, यार मैं हूं, आप मेरे को हायर कर सकते हो, बट आई एम नॉट लुकिंग फॉर हायरिंग। इसलिए एक यहाँ पे लिखा हुआ है शो रिक्रूटर्स यू आर ओपन टू वर्क। आई एम नॉट शोइंग बिकॉज आई एम नॉट waiting for someone to hire me. I'm already running my startups and heading on to start my first business, so I do not want someone to hire me. Second thing is that show that you are hiring and attract qualified candidate, means now I want to hire someone for Course My Way. So what I can do, I can open, I can get started with it, I can fill all the details of the profile which I want, and people, they will connect with me if they want to get hired by me, all right. सो ये पॉइंट समझ में आया आपको कि ये जो हेडलाइन है क्यों चाहिए, एंड हाउ टू राइट अ हेडलाइन? लेट मी शो यू। या this is my name, my surname, and this is the headline, all right. And now you might be wondering that if I'm the CEO of my firm, why am I writing this at last? किसी के दिमाग में क्वेश्चन आया कि मैं CEO फाउंडर मैंने एकदम लास्ट में क्यों लिखा? एनीवन?
ओके, नो वन, लेट मी टेल यू द रीजन। मैंने लास्ट में इसलिए लिखा क्योंकि कोई भी बंदा लिंक्डइन में फाउंडर सर्च नहीं करेगा, सीईओ सर्च नहीं करेगा, क्योंकि फाउंडर और सीईओ ऑलरेडी गूगल पे आपको मिल जाते हैं अगर बहुत अच्छी फर्म होती है तो। और जब बंदे का बहुत नाम होता है तो फाउंडर सीईओ नहीं डायरेक्टली उसका नाम डालते हैं, राइट? सो फाउंडर सीईओ सिर्फ इसलिए मेंशन करा कि ताकि वो लोगों को पता रहता है आई एम एन एंटरप्रेन्योर। तो सेकंड थिंग कि मैंने जो स्टार्टअप, पर्सनल फाइनेंस, क्रिप्टो करेंसी, एंटरप्रेन्योर, बिजनेस एंड स्टार्टअप्स, सेल्फ डेवलपमेंट, मैंने पहले क्यों लिखा? ताकि जब भी कोई बंदा सर्च करे ना तो ये 4 मेरे ऑप्टिमाइजेशन का काम कर दे, सर्च ऑप्टिमाइजेशन के लिए मेरा काम कर दे, तो ताकि जैसे वो कुछ करे उनको वहां पता चल जाएगा कि ये बंदा है। अब करेंटली मेरी प्रोफाइल टॉप फर्स्ट पेज में शो नहीं होगी बिकॉज आई एम नॉट हाईली एक्टिव ऑन लिंक्डइन राइट नाउ। I post once in 2 days, maybe sometimes once in 3 days, because I'm not getting time to open the social media platform, any social media platform other than Instagram, because Instagram पे बस मैं post करने आता हूँ, post करा and then I'm off. So, and yeah, this is 932 followers, the people who have followed me, 500 plus connections. It is a badge given by to you from LinkedIn, which is a good badge. The second badge जो मिलता है यहाँ पे लगाते हैं ना, you get is this all-star badge. अभी ऑल स्टार बैच कैसे आता है? आपने प्रोफाइल बनाई, आपके उसके बाद आपने ना यहाँ पे कुछ ये स्किल्स एंड एंडोर्समेंट आपने करा कि मेरे अंदर ना ये स्किल है, मेरे अंदर ये एंडोर्समेंट है, मेरे अंदर ये स्किल्स है, आपने लगा दिया। प्लस अकम्पलिशमेंट। अब व्हाट इज दिस अकम्पलिशमेंट थिंग? या हाँ, I always wanted to become an investment banker, but suddenly COVID happened and lot of things changed in my life, so I quit all those things. तो उसके लिए मैंने कोर्स करा था फाइनेंशियल मॉडलिंग एंड वैल्यूएशन. I got 98% in that. I was the highest scorer from internशाला. तो उसमें क्या, मेरे को सर्टिफिकेट मिला, मैंने सर्टिफिकेट डाल दिया, ठीक है. प्लस अब अकम्पलिशमेंट में मैंने जो लिंक्डइन है ना, आप जो आपने स्किल्स डाली, लिंक्डइन भी एक तरीके का यू कैन से एक क्विज ले लेता है या टेस्ट ले लेता है. उसमें जब आप स्कोर अच्छा करते हो ना, देन यू गेट स्टार हेयर. बट ऑल स्टार नहीं मिलता. ऑल स्टार तब मिलता है जब आपकी प्रोफाइल पूरी कंप्लीट होती है. व्हेन यू विल मेक अ प्रोफाइल, वहां बहुत सारे पॉइंट्स होंगे. तो 3 लेवल सुने होंगे, बिगिनर, इंटरमीडिएट एंड एडवांस. तो ये जो ऑल स्टार होता है ना, ये एडवांस के लिए होता है, या बोल सकते हैं कंप्लीट प्रोफाइल के लिए होता है. तो ये कंप्लीट प्रोफाइल मेरा 20 डेज पहले हुआ था. सो इट इज नॉट अ प्रोसेस कि आपने आज लिंक्डइन बनाया है और आज ही आज आपको पूरा ऑल स्टार मिल जाएगा. नहीं, इंटरमीडिएट तक आपको मिल सकता है. इंटरमीडिएट से आप थोड़ा भी आगे जा सकते हो, बट एडवांस तब होगा जब आपके पास एक्सपीरियंस वगैरह होगा और आपने डाल रखा होगा. ऑलराइट, यस, यहाँ तक आपको समझ आ गया सारा? एनीथिंग व्हिच यू वांट मी टू रिपीट? Anyone? सो गए सारे? ऋतिक, किरत, आ नावेद, गया समझ. आ गया समझ. ऑलराइट, सिर्फ किरत को ही समझ आया, बाकी लोगों को समझ नहीं आया. आकांक्षा yes, को आ गया. आ गया. यार बोल दिया करो, मेरे को लगा सो गए. सो द नेक्स्ट थिंग इज कि यार अब आता है हमारा कॉलेज या हमारा स्कूल. सो हम कौन से कॉलेज में पढ़ते हैं? हम पढ़ते हैं दिल्ली मेट्रोपॉलिटन एजुकेशन. तो सबसे पहले आपको प्रोफाइल बना के किसी और को फॉलो करो ना करो, अपने कॉलेज को, अपने स्कूल को, दो एंटिटीज को हमेशा फॉलो करना है. पर ऐसा क्यों? जब आप किसी को इंटरव्यू कर रहे होते हो या किसी का इंटरव्यू दे रहे होते हो, उसमें क्या होता है, कहीं ना कहीं बात आ जाती है कि यार आप कौन से कॉलेज से थे. कभी कभी पूछ लेते हैं. एंड then they try to go on your profile and see your connections, and if they see that you are not following the page of your college, of your school, even though you are passed out, they feel that ये बंदा ट्रू नहीं है, या ऐसा क्यों हुआ. मतलब एक क्वेश्चन बैठ जाता है मेरे दिमाग में, ऐसा क्यों हुआ. सो दिस इज समथिंग जो कि आपको अवॉइड करना चाहिए. तो उसके लिए सबसे फर्स्ट अकाउंट अपना दिल्ली मेट्रोपॉलिटन एजुकेशन यहाँ पे डालेंगे. आज ही अपनी प्रोफाइल बनाइए एंड यहाँ पे फॉलो कीजिए. प्लस जितने भी इंटरेक्शन होते हैं ना, इस पे आप ज्यादा से ज्यादा एंगेज करो. क्यों? क्योंकि कॉलेज से इंटर्नशिप मिलने के चांसेस आपके तभी हाई होंगे जब आप कॉलेज के साथ, कॉलेज की फैकल्टीज के साथ इंटरेक्ट करोगे. वो आपका नाम रिकमेंड करेंगे, प्लस
अगर आपकी रिक्रूटिंग के टाइम आपने इंटरव्यू अच्छे से क्लियर करा तो आपका वो प्लस पॉइंट होता है। बट अगर टीचर्स आपको अच्छे से जानते हैं कि ये बच्चे में कैपेबिलिटी है, ये ये बच्चा बहुत ज्यादा इंटरेक्ट करता है, दे विल हेल्प यू इन एवरी मैनर पॉसिबल। व्हाट डू यू थिंक, मैं यहाँ पे क्यों आ गया हूँ? अभी तक हमारे कॉलेज में बहुत सारे जनों को नहीं पता दैट आई हैव स्टार्टेड अ स्टार्टअप। कुछ फैकल्टीज को नहीं पता, मैंने सिर्फ 3 फैकल्टीज को बताया है अभी। क्यों? क्योंकि मैं उनके साथ कनेक्शन में हूँ, मैं उनके साथ इंटरेक्ट करता हूँ। एंड अभी मैं क्लासेस नहीं ले पा रहा था, so they asked me. They generally do not ask anyone. They literally ask people or ask my friends and me that why are not attending the college classes. Then I told them, ma'am, this is the reason. This is why I'm not attending the college classes. Because I'm connected through them. तो टीचर्स जो है ना यार, आपके साथ हमेशा आपको उनका बॉन्ड, उनके साथ हमेशा आपको अच्छा रख के करना होगा, क्योंकि वो ऑलरेडी कॉर्पोरेट फील्ड में है, एक कॉलेज के फैकल्टी मेंबर है, तो बहुत बड़ी बात होती है। प्लस आपके अगर कनेक्शंस अच्छे होंगे ना, तो आपको बहुत बहुत चीजों में वो हेल्प कर सकते हैं कॉलेज में। लिटरली दिस इज माय पर्सनल एक्सपीरियंस व्हिच व्हाट आई एम थिंकिंग। आई एम अ नोटोरियस चाइल्ड सिंस चाइल्डहुड, बट स्टिल ऑलराइट। The another one which I'm going to tell is this one, the bio, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि यार ये अबाउट सेक्शन में हम नीचे आते हैं। हाँ, ये जो अबाउट सेक्शन था, इसमें मैंने क्या लिखा है, इसमें ना हम बायो में, इंस्टाग्राम की बायो में व्हाट वी एक्चुअली राइट इज लाइक, चलो मैं मतलब आप समझ जाओ यार इंस्टाग्राम की बायो कैसी सी होती है लोगों की, लाइक केक, मर्डर, बर्थडे और स्नैपचैट की आईडी वगैरह देना। दिस इज नॉट गुड ऑन लिंक्डइन, ये सब नहीं लिखना आपको, केक मर्डर ऑन दिस और वगैरह वगैरह। आई एम नॉट गोना शो बिकॉज़ दिस इज अ ऑफिशियल सेशन। सो दिस, तो इसमें हम अबाउट में हम क्या लिख सकते हैं? अबाउट में हम लिख सकते हैं कि आपने अपनी जर्नी कब स्टार्ट करी थी। आप लिंक्डइन क्यों बना रहे हो? 2 चीजों के लिए, कनेक्शंस, बिल्डिंग कनेक्शंस, एंड सेकंड हायरिंग, आर यू रिक्रूटिंग और यू आर गेटिंग हायर्ड। तो आपका प्रोफाइल हमेशा वो डिस्प्ले करना चाहिए कि आप कहना क्या चाहते हो, आपकी प्रोफाइल किस बारे में है, वो कहां से पता चलेगा? अबाउट सेक्शन से। अबाउट में मैंने लिखा आई एम बिल्डिंग माय पर्सनल ब्रांड सिंस November 17, 2020। ओके, आई स्टार्टेड अपलोडिंग कंटेंट ऑन बुकिश बिजनेस टिप्स। ओके, बट मेरे को बाद में ऐसे लगा कि यार ट्रस्ट और एक्सपीरियंस बहुत मैटर करता है जब आप पर्सनल ब्रांडिंग कर रहे हो। तो मैंने एक सिंपल अप्रोच ली, मैं पहले चीजें लर्न करता था, मैं उसको खुद ट्राई करता था, व्हेन जब मेरे को लगता है कि हाँ यार इस चीज में मेरे को सक्सेस मिला या चीज मेरे लिए वर्क कर रही, मैं उसको शेयर कर देता था। लर्न, अप्लाई, शेयर। और उसके बाद मैंने अपना एक्सपीरियंस डाला एज इन फॉर्म ऑफ कंटेंट। कौन सा यार? पर्सनल फाइनेंस, सेल्फ डेवलपमेंट और बिजनेस के बारे में। ठीक है, अब मैं ना, अब यहां तक ना बात अच्छी थी। नेक्स्ट मैंने लिखा है कि आई एम वेटिंग फॉर यू टू कनेक्ट विद मी ऑन, मतलब मैंने एक हुक दे दिया, दिस इज नोन एज क्लिक बेट और हुक, व्हाटएवर यू वांट टू से, कि यार बंदे ने अपने तीनों हैंडल मेंशन कर दिए यहाँ पे, अगर किसी को भी मेरे को कनेक्ट करना होगा कर सकता है इस यूजर नेम से। प्लस अब आपने फिर देखा होगा यार वत्सल ने एंटरप्रेन्योरशिप फिर लास्ट में लिखा है। व्हाई? क्योंकि एंटरप्रेन्योरशिप लोग कम सर्च करते हैं लिंक्डइन पे। लिंक्डइन पे मेनली लोग जॉब सीकर होते हैं या रिक्रूटर्स, मेनली वो काम होते हैं। बाकी प्रोफेशनल नेटवर्क किसी को बिल्ड करना होता है अपने बिजनेस वगैरह के लिए, वो अलग होते हैं, पर मेनली ये लोग होते हैं। तो वो क्या करते हैं, वो एंटरप्रेन्योर सर्च नहीं करेंगे, वो एक वर्क प्रोफाइल सर्च करेंगे, डिजिटल मार्केटर, इन्वेस्टमेंट बैंकर, हेज फंड मैनेजर, स्टॉक ब्रोकर, क्रिप्टो एनालिस्ट, एक्सेल, एनीथिंग एनीथिंग। तो मैंने हमेशा नीचे लिखा है ताकि, और फिर मैंने लिखा सो आई फाउंडेड Courseweb and currently building it to help students and millennials advance their careers. I'm going to tell you what is that. All right. Now, I have also mentioned कि अगर आपको मुझसे पर्सनली कुछ बात करना हो, किसी बिजनेस कुछ भी, अगर आपको मुझसे कोई भी बात करनी हो, आप मेरे को मेरी जीमेल पे रीच कर सकते हैं, दैट इज vatsalrunavat7@gmail.com। जो भी रिक्रूटर होगा ना, ये देखने के बाद आपको मैसेज करेगा ही करेगा। अगर आप उसके प्रोफाइल में सूट नहीं भी कर रहे ना, तब भी आपको मैसेज करेगा ताकि आपके साथ एक लॉन्ग टर्म रिलेशन बिल्ड हो जाए, क्योंकि आप कहीं ना कहीं उसके बिजनेस में आगे काम आ जाएंगे। तो अबाउट में अब मैं चाहता, अबाउट होती है अप्रोक्सीमेट 2500 वर्ड्स के आसपास होती है अबाउट। अब इसका मतलब ये तो नहीं कि आप पूरे 2500 वर्ड भरो, नहीं, जितना है सिर्फ उतना लिखना है आपको, ज्यादा नहीं लिखना, क्योंकि जितना ज्यादा लिखोगे और मैच नहीं होता फिर वो आपकी बातों से, तो रिक्रूटर आपको ब्लॉक कर सकता है या आपके लिए गंदे रिव्यूज भी दे सकता है, जो कि आपको फ्यूचर में हेल्प नहीं करेगा। ऑलराइट, ये हो गया हमारा अबाउट सेक्शन। तो कोई भी रिक्रूटर आएगा, सबसे पहले यार आपको वो हेडशॉट देखेगा। अब हेडशॉट कैसा होना चाहिए मैंने आपको दिखाया कि प्रोफाइल इतनी होनी चाहिए, फेस स्माइलिंग रखना चाहिए, ऐसा नहीं रखना, ये सब फेसेस नहीं चाहिए, स्माइलिंग फेस चाहिए आपका, चार्मिंग फेस जो लगता है स्माइलिंग, वो चाहिए यार हमें। और कवर पेज बहुत इंपॉर्टेंट होता है यार, मैंने आपको प्रोफाइल दिखाई थी, अभी उसमें कवर पेज नहीं था पीछे। अब कवर पेज क्यों लगाना चाहिए? क्योंकि पहली नजर ही कवर पेज पे पड़ेगी।
ये जो हेडशॉट है ये तो छोटा सा है, पहला जो नजर है वो पड़ेगा हमारे इस पे। तो कवर पेज को भी बनाना, कैसे बनाना, दैट इज ऑन यू। आप कवर पेज पे अपनी खुद की प्रोफाइल पिक लगा सकते हो, प्लस आप एडिट कर सकते हो। क्या एडिट कर सकते हो, एक ब्लैंक आपने स्क्रीन ले ली, उसमें जिन जिन कंपनी में आपने काम करा है वहां उसका लिख सकते हो, या जिस प्रोफाइल पे आपने काम करा, लाइक मार्केटिंग मैनेजर, I'm telling you this is the person. Yeah, if you want to become an employer, see, okay, he has changed this, he has changed his cover page. All right, let me show you of Neil Patel. Wait, yeah, this is something which you can say, like he provides actually services, like he is a digital marketer, the best digital marketer of the world, not one of the best but the best. All right, and he's from Indian origin, but he lives in I guess New York. I'm confusing 3 regions. Yeah, so इन्होंने क्या लिखा है, SEO, कंटेंट मार्केटिंग, PPC, सोशल, इन्होंने पूरा लिख दिया। आपको ज्यादा ट्रैफिक चाहिए, वांट मोर ट्रैफिक, ये सब है। अब लोगों को साफ पता चल रहा है कि ये बंदा एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी ओन करता है। दैट्स सिंपल। मतलब आपको अपने कवर पेज से ये बताना है कि आप करना क्या चाहते हो। अगर आपने लाइक कहीं काम करा हो तो यू कैन से मार्केटिंग मैनेजर दिस और व्हाटएवर द जॉब प्रोफाइल इज, वो आप ऊपर कवर पेज में मेंशन कर दो। दैट इज सिंपल, रियली गुड एंड सिंपल। ऑलराइट, लिंक्डइन में एक इन्वेस्टर का भी होता है। लाइक मेरे को अब लेट्स से आई एम बिल्डिंग माय फर्स्ट बिजनेस, तो मुझे उसके लिए फंड्स चाहिए। आई हैव 2 ऑप्शंस, आइदर गो टू VC, दैट इज वेंचर कैपिटल। आपने सुना होगा ना कि यार इसने फंडिंग उठा ली, IPO, जोमेटो का IPO आ रहा है, बट उससे पहले वो फंड्स पे चलता था। नॉर्मल फंडिंग किसी को लेनी होती तो उन्होंने फंडिंग ले ली थी। फंडिंग कौन देते हैं, इन्वेस्टर्स देते हैं। तो हमारे पास 2 तरह के होते हैं, वेंचर कैपिटलिस्ट। सेकंड होता है कि आप क्राउड फंडिंग कर सकते हो लिंक्डइन के थ्रू। क्राउड फंडिंग ये क्या है, क्राउड फंडिंग आपने किसी से फंड्स लेने हैं, आप उसको 3 चीजों में आप कर सकते हो उसको रिवर्ट। कैसे, पहला होता है कोई प्रोडक्ट आपने अपना, आपके पास में कोई चीज पड़ी है, अच्छा प्रोडक्ट है, अब आपको एंड आपका बिजनेस भी उसी वे में चल रहा है, आपने बोला कि यार मेरे को फंड चाहिए या बिजनेस चाहिए, तो अब नॉर्मल सेलिंग नहीं हो रही, तो आपने क्राउड फंडिंग के लिए वो प्रोडक्ट उस बंदे को दे दिया, उसने प्रोडक्ट लिया और आपको पैसा आ गया। सेकंड होता है कि आप एज अ इक्विटी उसको दे रहे हो कि यार मेरे को ना अभी 1 लाख रुपए चाहिए, तो मेरी कंपनी की वैल्यू कुछ इतनी है, तो अगर आप 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करोगे तो कुछ परसेंट आपको आप ले लो, तो आपने उसको इक्विटी दे दी। थर्ड थिंग होता है डेट, एज अ डेट आपने फंडिंग ली और बोला कि मैं आपको विद इंटरेस्ट रिटर्न कर दूंगा, प्रिंसिपल इंटरेस्ट दो। तो 3 तरीके से आप फंडिंग भी रेज कर सकते हो लिंक्डइन के थ्रू। तो आपको पोस्ट डालने पड़ेंगे कि यार मैं यहाँ जा रहा हूँ, मैं वहां जा रहा हूँ, इस तरीके से वो काम चलता है। ऑलराइट, वो अभी इतना एक्टिवली आप यूज नहीं करोगे, वो अगर आपको यूज करना होगा तो सेकंड या थर्ड ईयर में ही करोगे, क्योंकि तभी आप थोड़े बाहर आते हो, थोड़ी दुनिया एक्सप्लोर करना स्टार्ट करते हो, थोड़ा थोड़ा आपको पता चलता है, तब आपके पास अलग अलग आइडियाज भी आते हैं। ऑलराइट, तो प्रोफाइल सर्च ऑप्टिमाइजेशन आई हैव टोल्ड यू कि प्रोफाइल सर्च ऑप्टिमाइजेशन में मैंने आपको बता दिया कि हमारा हेडशॉट, हमारा कवर पेज, हमारा हेडलाइन एंड हमारा दिस अबाउट सेक्शन। देन वी हैव एक्सपीरियंस सेक्शन। व्हाट इज एक्सपीरियंस यार, आपने कहीं काम करा है ना, तो इधर जाओ, ये प्लस सेक्शन पे जाओ। आपने कहीं इंटर्नशिप करी, आपने कहीं, क्या टाइटल था आपका, यार मेरा था इन्वेस्टमेंट बैंकर, इधर आ जाएगा। चलो इन्वेस्टमेंट स्पेशलिस्ट। एम्प्लॉयमेंट टाइप क्या थी, फुल टाइम, पार्ट टाइम जॉब थी, सेल्फ एम्प्लॉयड थे या फ्रीलांस करते थे या इंटर्नशिप। मैंने कहा इंटर्नशिप करता हूँ यार मैं, कौन सी कंपनी में, मैंने बोल दिया चले यार माइक्रोसॉफ्ट में मैंने। अब यहाँ पे नीचे आप इधर आओगे, जस्ट गिव मी अ सेकंड, या अब आप यहाँ पे नीचे आए, आपने बोला क्या, कौन सी लोकेशन में काम करा, कि आप करेंटली वर्क कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, कब स्टार्ट करा था, कब एंड करा था, या प्रेजेंट है, दिस इज। और उसके बाद आप अपने यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दे सकते हो, जॉब में आपने क्या क्या करा। इससे क्या होता है, एक ना एक अच्छा पोर्टफोलियो आपका बिल्ड हो जाता है, जॉब पोर्टफोलियो, कि यार अच्छा इस बंदे ने ऐसा काम करा है। और डिस्क्रिप्शन में होता है कि मैंने ऐसे ऐसे काम करा, मैंने ऐसी डील्स लॉक करी थी, या डील्स नहीं, इंटर्न में ऐसे डील्स तो लॉक नहीं करवाते, आपको पेपर वर्क ज्यादा देंगे, पेपर वर्क मैंने अच्छा करा था उसमें, या नहीं तो मैंने कंप्यूटर में जो एंट्रीज वगैरह करनी होती है वो मैंने ऐसे डेटा एनालिस्ट का भी करा हो, जो भी चीजें होती है। आपको कुछ लिंक अपलोड करना है, कोई फोटो वगैरह अपलोड करनी है, एंड उसके बाद आपको करना है सेव। ऑलराइट, ये पॉइंट समझ आया आप सबको, प्लीज रिवर्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है एक्सपीरियंस का, एक्सपीरियंस मैटर्स। मतलब कहते हैं ना कि यार जॉब देखने जाते हो तो आपका एक्सपीरियंस देखते हैं, तो लिंक्डइन पे वो ऐसे आपका एक्सपीरियंस देख लेंगे। अब कोई अगर मेरे को देखेगा तो वो देखेगा
कोर्स में वे पे बंदा काम कर रहा है, अच्छा सीईओ है, और कोर्स में वे क्या करती है, फ्री कोर्सेज देती है जो कि वर्ल्ड की बेस्ट यूनिवर्सिटी डिजाइन करती है, वहां से कोर्सेज लेते हैं और फ्री में देते हैं। अच्छा ठीक है, तो ये बंदे की एम्प्लॉयमेंट टाइप फुल टाइम है और सीईओ हूँ, अभी तो एकदम से पार्ट टाइम थोड़ी आ जाऊंगा मैं, या मैं तो इंटरिम सीईओ हूँ, तो फुल टाइम है। ऑलराइट, आपको समझ आया एक्सपीरियंस का? प्लीज टेल। Yes. ग्रेट यार, बस एक ही बंदे को समझ आया? Yes, sir. आ गया. आ गया, ऑलराइट। अच्छा, मैंने आपको चीज बताई थी यार, यहाँ पे हेडलाइन, ये हेडलाइन मैंने ये जो बड़ी बड़ी चीजें लिखी हैं, इसको हम कीवर्ड बोलते हैं डिजिटल मार्केटिंग की लैंग्वेज में। स्पेशली मैंने आपके लिए सब नोट करा बिकॉज आई एम नॉट वेरी गुड एट डिजिटल मार्केटिंग। इनफैक्ट मैंने 4 बार कोर्स परस्यू करने का ट्राई करा, मैंने चारों बार एक एक महीने में छोड़ दिया बिकॉज वो मेरे को बहुत बोरिंग लगता है, तो मैं डिजिटल मार्केटिंग की तरफ इतना नहीं जाता। तो ये जो चीजें होती है ना, इसको हम कीवर्ड बोलते हैं। जब आप कीवर्ड्स डाल, कीवर्ड का क्या मतलब, एक वर्ड है जो कि की है आपके लिए, मतलब वो आपको बहुत ऊपर तक लेके जा सकती है, दैट इज द मीनिंग ऑफ अ कीवर्ड। ऑलराइट, तो अगर कोई भी बंदा पर्सनल फाइनेंस, क्रिप्टो करेंसी, एंटरप्रेन्योर, काफी कम लोग सर्च करते हैं, स्टार्टअप कंसल्टेंट ज्यादा सर्च करते हैं, सेल्फ डेवलपमेंट ज्यादा लोग सर्च करते हैं। तो अगर इन प्रोफाइल पे सर्च पे अगर किसी बंदे ने लिखा पर्सनल फाइनेंस, तो बहुत मुश्किल है मेरी प्रोफाइल अगर ऊपर आ जाएगी, बट स्टिल लेट्स ट्राई। मैं फर्स्ट टाइम ट्राई कर रहा हूँ, मैंने अभी तक ट्राई करा नहीं है। आई वांट पीपल। अच्छा, तो मेरी प्रोफाइल है, मेरी प्रोफाइल में मैं खुद कैसे आऊंगा? ऑलराइट, तो लेट्स से जैसे ये आगे शुभम कंसवाल, मोदिता सिंह, अनमोल पनवंदा एंड आकांक्षा किरण। तो यार आकांक्षा किरण की ना डीपी नहीं है, सॉरी हेडशॉट नहीं है, इसका प्रोफाइल पिक्चर नहीं है, दिस इज रियली रियली बैड। आपका हेडशॉट होना बहुत जरूरी है, अगर हेडशॉट नहीं है तो स्किप हो। नेवर थिंक आप हेडलाइन में कुछ भी लिख दो, अगर आपके पास ये नहीं है ना, तो दे आर नॉट गोना सी कि आप कौन हो, क्या हो, कितनी अच्छी स्पेसिफिकेशंस हैं आपकी, क्या कितना अच्छा रेज्यूमे, कोई नहीं देखेगा। ऑलराइट, एक गुरप्रीत का अच्छा है, लाइक गर्ल्स के लिए, इफ वी सी मोदिता, जस्ट सी हर प्रोफाइल, जस्ट रियली कूल प्रोफाइल पिक्चर, नथिंग एल्स, जस्ट अ फेस एंड अ पोर्शन अबव चेस्ट, दैट्स इट। क्योंकि वो लोग आपको पूरा नहीं देखना चाहते, सिर्फ इतना देखेंगे वो आपको, दैट्स इट। कि सिर्फ मेनली सिर्फ शक्ल देखते हैं वो, एंड पीपल डू सी, लाइक मैं ये नहीं कह रहा कि आपकी शक्ल अच्छी होनी चाहिए, सबकी शक्ल अच्छी होती है, बट आई एम सेइंग इज यार फोटो ना थोड़ी अच्छी होनी चाहिए आपकी। अगर आपको नहीं समझ आ रहा घर पे फोटो खींचना है, तो किसी प्रोफेशनल फोटोग्राफर के पास चले जाओ, बहुत सारे होते हैं, वो आपकी फोटो खींच देंगे, देखो ना, चार्ज समथिंग। और आपके फ्रेंड्स होंगे जो कंटेंट क्रिएटर है ना, आपका फ्रेंड, आप उसको बोल देना, वो आपके लिए अच्छे से फोटो क्लिक कर देगा, दैट्स इट, यू आर गुड टू गो। Alright, so just she has 279 connections, but 284 people follow her. What does this mean? That means she hasn't followed back 5 people. This is what we see regularly on Instagram. Alright, people, so when you rank your keywords, these are keywords, and when you actually rank them, the recruiter who is looking for a certain job profile is able to see you, is able to spot you, because when you appear at the first page. All right, so what kind of things recruiter look? That is your headshot, all right, your skills, your accomplishments, your experiences, and your name, not name actually, your headline about section. Yeah, so now the thing which I'm going to discuss, the session is not going to go long now, because yeah, there are only 2 things now to discuss. After that we will take Q&A session. The first thing is skills and endorsements. I've already told you that this is my skill, entrepreneurship. I know value investing, I know personal finance, but what is endorsement? Yeah, let me show you. This is a profile of let's say one of my friends is Rishabh. Yeah, Rishabh Singh, here is he. All right, so see, he also does not have cover picture, which is really bad, and I'm sorry Rishabh, I'm using a profile. Yeah, अरे ये क्या है यार, यहाँ पे ये प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के आगे 1 कैसे लिखा हुआ है? दिस इज नोन एज एंडोर्समेंट। मतलब आपने कुछ काम करा और आपने बोला कि यार अब नाउ व्हाट डू यू नीड, यार मैं चाहता हूँ कि मैं जो मेरे पास स्किल है ना,
वो उसका में कुछ नंबर लग जाए तो अच्छा हो जाएगा, जैसे 99, 98, मतलब आप उस स्किल में बहुत अच्छे हो, मतलब उतने जनों ने आपको एंडोर्स किया है, आपको रेफर करा है। अगर मैं बोलता हूँ स्ट्रैटेजी के लिए अच्छा है, मैंने प्लस पे क्लिक करा, सेकंड स्टेप, अब हाउ गुड इज ऋषभ एट स्ट्रैटेजी, गुड है, वेरी गुड है, हाईली, मैंने कहा भाई हाईली स्किल्ड है, क्या रिलेशनशिप है आपका, आप कैसे जानते हो कि वो हाईली स्किल्ड है? अब आप में से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हो, क्या मैंने ऋषभ के साथ में काम किया है, क्या मैंने उसको मैनेज करा है, क्या मैंने उसको रिपोर्ट करा है, क्या हम दोनों ने इनडायरेक्टली एक साथ काम करा है, क्या मैंने ऋषभ की स्किल किसी और से सुनी है, या नन ऑफ दैट। कुछ भी कर लिया मैंने, ऑलराइट, मैंने कुछ भी कर लिया, अब मैंने कर लिया, अब ये बंदा मेरे को एंडोर्स भी तो करना चाहिए ना, ये तो जमाना है गिव एंड टेक का, अगर हमने किसी को करा तो भैया अगर आप हमें नहीं करोगे तो हम आपसे दोबारा छीन लेंगे, जैसा अभी मैंने छीन लिया इस स्ट्रैटेजी का। तो अब उसके लिए क्या करूं? अब आपने उस बंदे को एंडोर्स कर दिया, अब उस बंदे को पता है एंडोर्समेंट की क्या वैल्यू है, मतलब आपने उसको रेफर कर दिया, कोई रिक्रूटर आपके प्रोफाइल पे आएगा तो सबसे पहले वो अगर स्किल्स एंड एंडोर्समेंट के जब नीचे सेक्शन पे आएगा वो देखेगा, अच्छा इतने सारे लोगों ने एंडोर्स करा, मतलब कुछ तो बात है इसमें। अब आपने तो कर दिया, वो आपको कैसे करेगा? सिंपल सा मैसेज भेजोगे अब आप उस बंदे को, जैसे मैं दिखाता हूँ, जैसे ऋषभ को मैंने करा था, ये ऋषभ है, ठीक है, मैंने ऋषभ को बोला, हे ऋषभ, आई जस्ट एंडोर्स यू फॉर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, all the very best in your what is this, this is not anything, I was supposed to put a full stop there, all right, all the best for your all the best in your journey ahead, मैंने उसको विश कर दिया। ये सुनने के बाद ना उसकी फेस पे स्माइल आ जाएगी। अब वो नेक्स्ट लाइन पढ़ता है, इट विल बी really a great help if you can endorse me for these 3 skills, entrepreneurship, value investing and personal finance, कि यार मैंने तो तेरे को एंडोर्स कर दिया ना, अब तू भी प्लीज मेरे को एंडोर्स कर दे। आप ये चीज एक दिन में 30 लोगों को भेजो, 30 में से लेट मी टेल यू लिंक्डइन पे लोग रिप्लाई कर देते हैं 16, 17, 18, 30 में से अगर 16, 17 बंदों ने भी आपको एंडोर्स कर दिया ना, यू विल बी रियली गुड टू गो। बट उसके लिए पहले आपको ऑलरेडी उस फील्ड में वर्क करना पड़ेगा। व्हाई? बिकॉज अगर आप वर्क नहीं करोगे एंड सामने वाले बंदे आपको एंडोर्स तो करे जा रहे हैं, कल को आपका इंटरव्यू होगा तो रिक्रूटर को पता चल जाएगा कि आपने फॉल्स वे से एंडोर्समेंट करवाई है अपनी, ऑलराइट, तो वहां पे आपकी प्रोफाइल खराब हो जाएगी, आपका खुद का व्हाट यू कैन से, आपकी पर्सनालिटी वहां पे सही नहीं लगेगी, तो आप ऑलरेडी हायर होने से रहे। प्लस अगर उन्होंने वर्ड ऑफ माउथ गंदी कर दी आपकी, ये बेकार है नहीं करना, तो आप कितना भी अच्छा काम कर लो आपको इजीली हायर नहीं करेगा कोई भी कंपनी, राइट? दिस इज समथिंग व्हिच यू नीड टू केयर अबाउट, एंडोर्समेंट, स्किल एंड एंडोर्समेंट। एंडोर्समेंट क्यों? क्योंकि अगर जैसे अब क्लास में फर्स्ट आता है क्या, उसको एंडोर्स फर्स्ट, मतलब नंबर मिल गया ना, फर्स्ट है भाई, वो सेकंड है, वो थर्ड है, टॉपर है, तो दिस एंडोर्समेंट, इतनी ज्यादा एंडोर्समेंट है उसकी, चलो इससे हम बात करते हैं, इससे मैं कनेक्शन बनाता हूँ, हायर करता हूँ। लाइक दिस इज चरणजीत कौर, अब आई डू नॉट नो हर, मेरे को नहीं पता ये कौन है, कहाँ से है, बट मैं इसको फॉलो करता हूँ, ये मेरे को फॉलो बैक करती है, ये एक डिजिटल मार्केटर है, मैंने इसको एंडोर्स करा था आज सुबह, तो मैंने इसको लिखा है ऑलरेडी एंडोर्स यू फॉर टॉप 3 स्किल्स, इट वुड बी रियली ग्रेट इफ यू कैन एंडोर्स मी टू फॉर माय 3 स्किल्स, आई एम एक्टिवली वर्किंग ऑन दीस स्किल्स। मैंने इसको लिखा यार मैं ऑलरेडी ना काफी काम कर रहा हूँ मैं इन 3 स्किल पे, दैट इज ये मेरी स्किल है, इट विल रियली हेल्प मी अ लॉट। उसको पता है वो मेरे को क्यों हेल्प करेगा। कोई रिक्रूटर अगर मेरे को करना चाहता है या कोई बिजनेस ओनर मेरे साथ पार्टनरशिप में अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है, वो चीजें देख लेगा, अच्छा इस बंदे को नॉलेज है, चलो मैं इससे बात करके देखता हूँ। This is endorsement, all right? Now the last thing which we are going to discuss in the session is recommendation. यार प्रोडक्ट लेते टाइम हम रिव्यूज देखते हैं कि यार अच्छा वो प्रोडक्ट है उसके रिव्यूज देखा ना, यार शूज लेने रिव्यूज देखेंगे, फोन्स लेने हैं तो कोरा पे या अमेजोन पे, फ्लिपकार्ट, जहां से भी उसके रिव्यूज, यूट्यूब पे, खासकर यूट्यूब बहुत सारे चैनल्स हैं उनमें देखते क्या रिव्यू। तो इसमें रिव्यू होता है क्या? नहीं यार, लिंक्डइन पे रिव्यू नहीं होता, क्योंकि लिंक्डइन पे रिकमेंडेशन होता है। क्या होता है? रिकमेंडेशन। कैसे? अब मेरी एक फ्रेंड है, लेट्स से मुस्कान माथुर, आई वांट टू रिकमेंड हर। अब मैं रिकमेंड क्यों करूंगा? देखो रिकमेंड के ना 2 ऑप्शन होते हैं, या तो फेक रिकमेंडेशन, आपने बस मुस्कान माथुर, आप जैसे आपकी कोई बेस्ट फ्रेंड है, आपने उसको लिख के भेज दिया यार मेरे को ना रिकमेंड करते और ये सब लिखते हैं, दिस इज अ फॉल्स वे, नहीं करना, कभी नहीं करना। तो सेकंड वे अच्छा तरीका, आपने उस ऑलरेडी बंदे के साथ काम करा हुआ, जैसे मैं कोर्स में वहीं पे हूँ, अब मैंने आई हैव ऑलरेडी सेंट माय I've already sent the job profile to to one of my faculty, to one of the faculties of DME कि मैम मेरे को ना इस प्रोफाइल के बंदे की नीड है, डिजिटल मार्केटर में मैंने प्रोफाइल मेंशन कर दिया कि मेरे को चाहिए, तो मैम के पास ऑलरेडी गया है वो,
ठीक है। अब वो जो बंदा आएगा ना इंटर्न मेरे लिए काम करने के लिए, मेरे साथ मेरे फर्म को आगे बढ़ाने के लिए काम करेगा, मेरा टीम मेंबर, तो अब कल को उसको अगर लीव करना है तो मुझे ऐसा फेवर मांग सकते, यार एक फेवर दे कर दो। मैं कहा हाँ जी बोलो। वो मेरे को बोलेगा कि यार मेरे को रिकमेंड कर सकते हो। मैंने कहा बिल्कुल करूंगा रिकमेंड, क्यों? क्योंकि आपने मेरे लिए काम करा है, फर्म को आगे बढ़ाया है मेरे साथ मिलकर, आप वन ऑफ द कोर टीम मेंबर्स बने रहे काफी टाइम तक। मैं आपको कभी भूलूंगा नहीं, क्योंकि आप वन ऑफ द सीड मेंबर थे। सीड मेंबर का मतलब होता है कि जो कंपनी की या फर्म की स्टार्टिंग में काम करते हैं। ऑलराइट। तो अब मुस्कान बोल रही है यार, मुस्कान ने मेरे साथ काम करा और मुस्कान मेरी अच्छी दोस्त है और उसने मेरे को मैसेज भी आया कि मेरे को रिकमेंड कर देगा। मैंने कहा ठीक है मैं करता हूँ। तो रिकमेंड करने के लिए सबसे पहले आप मोर में जाओ। मोर में जाने के बाद तो ऑप्शन है, आप बोलो रिकमेंड। क्यों? क्योंकि आप रिकमेंड कर रहे हो। तो क्या रिलेशन है मेरा मुस्कान से कि मैंने मुस्कान के साथ डायरेक्टली काम करा। इनमें से कोई भी रीजन हो सकता है आपका, ठीक है। मतलब जो भी मैंने रीजन सेट कर लिया। मुस्कान अब पोजीशन, अब मुस्कान ने सिर्फ इतना डाला है कि वो स्टूडेंट है। हेडलाइन देखो, मुस्कान ने अपनी हेडलाइन में क्या लिखा है। What's this? या मुस्कान ने अपनी हेडलाइन पे क्या लिखा है? She has written student at गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी। ठीक है। तो इसने जो हेडलाइन में लिखा होगा ना, मोस्टली वही चीजें आती हैं ऊपर, और या एक्सपीरियंस में जो इसने डाला होगा, एक्सपीरियंस नहीं डाला इसने। तो जो एक्सपीरियंस होता है ना उसके अकॉर्डिंग पे वो ऑलरेडी जो लिंक्डइन होता है वो बैक एंड पे काम कर लेता है ना, आपको बताता है कि आपने किस तरीके से क्या करा। जैसे मैंने, अगर मैं आ जाऊं, अच्छा आपके दो ऑप्शन है, आप किसी को रिकमेंड कर दो प्लस आप बदले में रिकमेंडेशन मांग सकते हो। कि अब मुस्कान ने मेरे यहाँ काम करा, सपोज, तो मैंने मुस्कान को बोला मेरे को भी ना रिकमेंडेशन दे दे। मैं उसको बोला तेरे को जो अच्छा लग रहा है ना लिख दे, मेरे बारे में तेरे को जो अच्छा लगता है। कि मैं एक अच्छा एंटरप्रेन्योर हूँ, मैं लोगों को आगे बढ़ाने की ज्यादा हेल्प करता हूँ, लोगों की मदद करता हूँ आगे बढ़ने में, लोगों की हेल्प करता हूँ उनके जो सोसाइटल थॉट्स है उससे लड़ने में, या लोगों को हेल्प करता हूँ किसी ना किसी वे में। मैं कुछ ऐसा करता हूँ कि मुस्कान ने मेरे को रिकमेंड कर दिया, सिंपल सी चीज। अब हाउ डू यू नो मुस्कान? अब मैं चाहता हूँ कि मुस्कान मुझे रिकमेंड करे, तो मुस्कान मेरे को कैसे जानती? जो भी रिलेशन सिलेक्ट कर दो और क्या पोजीशन थी। देखो अब मेरी पोजीशन 3 क्यों आई यहाँ पे, सीईओ और स्टूडेंट है। 3 क्यों आई? क्योंकि मैंने काफी कुछ मेंशन करा था। मेरा एक्सपीरियंस जो था ना, एक्सपीरियंस आता है इसमें, हेडलाइन नहीं एक्सपीरियंस आता है। हेडलाइन में ऑलरेडी, सॉरी, एक्सपीरियंस का जो कॉलम था उसमें ऑलरेडी था, आई एम चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एट पुष्पन, तो आ गया। तो इसने बोल दिया कि सीईओ है। नेक्स्ट, हाय मुस्कान, कुड यू राइट में रिकमेंडेशन। ऑलरेडी मैसेज लिखा हुआ आ गया। अब आपको सिर्फ सेंड करना है और उसके बाद मुस्कान आपको रिकमेंड कर देगी। रिकमेंडेशन आप लोगों को पता होगा ना, जैसे एक प्रोडक्ट के लिए रिव्यूज काम करते हैं, वैसे ही एक इंसान के लिए उसका रिकमेंडेशन काम करता है। आपने सुना होगा कि यार अच्छा कपड़े लेने जा रहा है, नहीं उस ब्रांड से ले, नहीं उस वाले ब्रांड से ले, यूएस पोलो से ले, लिवाइस से ले, जो भी और भी अदर ब्रांड्स हैं। अच्छा स्पोर्ट्स के लिए जाना है भाई, एडिडास से नाइकी में से जा। प्यूमा के ठीक है, बट एडिडास नाइकी ना टॉप पे रहता है। अच्छा ठीक है। अच्छा देखो अगर जिम जाना है तो उस जिम में चले जा। आप रेकमेंड कर देते हो। आप देख लो द पावर ऑफ रिकमेंडेशन। अगर कोई भी बंदा रेकमेंड कर रहा है आपको, तो जो रिक्रूटर सबसे पहले देखा, अच्छा रिकमेंडेशंस हैं इसके पास, चलो मैं इससे बात करता हूँ। अच्छी रिकमेंडेशंस मैं आपको दिखाता हूँ। वैभव सिसिन, अरे यार वैभव सिसिंटी, ये बहुत अच्छे डिजिटल मार्केटर हैं, एंटरप्रेन्योर भी हैं। एंड लाइक देखो इनकी जो बायो है, इनकी बायो कितनी अच्छी है। देखो कितना ज्यादा लिखा है इन्होंने अपनी बायो में। क्यों? क्योंकि इतना काम कर चुके हैं इसलिए इन्होंने लिखा है। अननेसेसरीली बायो नहीं भरनी। इनका एक्सपीरियंस भी अच्छा है क्योंकि इन्होंने काफी जगह काम कर लिया है, काफी पहले जॉब करी इन्होंने, फिर उन्होंने अपना बिजनेस स्टार्ट करा। ऑलराइट। स्किल्स एंड एंडोर्समेंट में देखो 99 प्लस 99 प्लस 99 कितनी मिली है देखिए जरा। 168 बंदों ने इनको एंडोर्स करा है। जस्ट सी द अमाउंट। रिकमेंडेशन, दिस इज अ रिकमेंडेशन कि योगेश छाबरिया ने बोला सेंड हिम द मनी एंड लेट हिम डू द रेस्ट, अमेजिंग नॉलेज दैट वर्क्स। इसका मतलब यहाँ से पता चल रहा है कि इस बंदे ने, योगेश छाबरिया ने इनका कोर्स लिया होगा, कोर्स बहुत अच्छा लगा होगा, उन्होंने रिव्यू दे दिया। रिव्यू रिकमेंडेशन, लिंक्डइन पे रिव्यू नहीं होता, रिकमेंडेशन होता है। आई होप आपको समझ आ गया रिकमेंडेशन। तो सेशन यहाँ पे मेरा पार्ट ओवर हो जाता है, बट मैं आपको एक बोनस चीज बताता हूँ कि लिंक्डइन पे जब आप कनेक्ट करते हो ना लोगों से, तो लिंक्डइन के फ्री वर्जन में ना एक लिमिट होती है, दैट इज कि आप एक दिन में 40 से 50 बंदों के बीच में ही लोगों को रिक्वेस्ट भेज सकते हो। शायद मैं ज्यादा बोल रहा हूँ, इट वाज अराउंड 30 to 40 या 40 to 50, इन दो के बीच में होता है। तो 30 से 40 बंदों को या 40 से 50 बंदों को आप रिक्वेस्ट कनेक्शन के लिए भेज सकते हो, ऐसा ही होता है। 50 प्लस आई एम नॉट रिमेम्बरिंग, मेरे को तो नहीं याद कि 50 प्लस भी था। वो होता है प्रीमियम और सेल्स नेविगेटर वाले वर्जन में।
तो आप एक दिन में 30 से 40 बंदों के बीच में लोगों को रिक्वेस्ट भेजो, नहीं कोई, जैसे अब नेटवर्क मेरे ये है, माय नेटवर्क में मैंने क्लिक करा, तो अब मैं अगर नीचे जाता हूँ, कम ऑन माय मैन, नेट पे नहीं ऑन कर रहा, या सो जैसे अब इतने सारे बंदे, मैं सबको कनेक्ट नहीं करूंगा, मैं सिर्फ उन लोगों को कनेक्ट करूंगा मेरे को लग रहा है कि जिनके साथ मेरे को कनेक्शन बनाना है। लिंक्डइन की एक अच्छी चीज होती है कि आपको हर बैकग्राउंड का बंदा मिल जाएगा। कैसे? आपको कोडर मिल जाएंगे, आपको डिजिटल मार्केटर मिल जाएंगे, आपको फिटनेस पर्सन, स्पोर्ट्स या फिटनेस से रिलेटेड बंदे मिल जाएंगे, फाइनेंस के रिलेटेड बंदे मिल जाएंगे, साइंस के रिलेटेड बंदे मिल जाएंगे, बायोलॉजी, आपको किसी भी फील्ड के साथ कनेक्ट करना आपको मिल जाएगा, राइट। तो जैसे अब यहाँ पे देखो, ये हेडलाइन होती है जो लिखी होती है ना, प्रेसिडेंट एट एन एक्टर्स दयाल सिंह कॉलेज, ये क्या है? ये उसका हेडलाइन है, अबाउट सेक्शन नहीं, हेडलाइन है, ठीक है। प्लेसमेंट हेडलाइन है, फाउंडर, मैनेजिंग डायरेक्टर, ये सीनियर एग्जीक्यूटिव, ये सब क्या है यार? ये जूनियर एग्जीक्यूटिव, मैनेजिंग डायरेक्टर, एमडी, क्या है? दिस इज हेडलाइन। तो अब मैंने हेडलाइन पढ़ लिया, अच्छा हेडलाइन मैंने जैसे पढ़ लिया कि ये सीनियर एग्जीक्यूटिव है विस्तार में, चलो ठीक है, जूनियर एग्जीक्यूटिव है आईपैक में, चलो ठीक है, एमडी है इंडियन स्टील एंड वायर में, नीरज कांत आप लोगों को पता होगा, नहीं पता तो देख लेना, मैंने कनेक्ट कर लिया, ठीक है। अब मेरे को पता चलेगा कि इन लोगों के साथ ना मेरे को कनेक्शन करना मेरा जरूरी है, तो मैंने उनके साथ कनेक्ट करा। This is something which this was actually something which I needed to tell you. This is the bonus thing. Even I figured this shit out 2 months back कि यार LinkedIn पे भी ना restrictions होती हैं कि आप एकदम से बहुत सारे लोगों को बहुत सारी रिक्वेस्ट एक साथ नहीं भेज सकते हैं। All right. So guys, this session from my side is officially done. The knowledge which I wanted to provide is officially done. So if you want to ask any question, you can ask anything which you want. यार पढ़ लेते हैं प्लीज, मतलब पूछ लेते हैं, तो you can ask anyone, कुछ भी क्वेश्चन हो रहा है दिमाग में तो ask. कोई Sir, क्वेश्चन? how can we Yeah. connect with MBA alumni? Great question, yaar. Really great. Good. Let me share the screen again. Sharing. So, are you able to see my screen? Yes. All right. Like, I want to write MB. अब MBA alumni से आपको सीधा MBA नहीं लिखना. What you can write, एक particular college का नाम डाल दो. Like IIM अहमदाबाद मैंने डाला, कॉलेज का नाम डाल दिया, और मैंने बोला कि मुझे ना पीपल चाहिए जो IIM अहमदाबाद गए हैं। अब ये आ गए बंदे। हीना फातिमा IIM अहमदाबाद, अपूर्व वल्लभ IIM अहमदाबाद, IIT रुड़की, संदीप चौधरी जी इन्वेस्टमेंट एसोसिएट एट ABG इनोवेशन फंड IIM अहमदाबाद के ऑलरेडी रह चुके हैं। मैकेंसी कंपनी में वर्क करती हैं ऐश्वर्या, IIM अहमदाबाद के एल्यूमिनस हैं। तो समझ आ गया कैसे सर्च करना है एल्यूमिनस के लिए? रितिका समझ आ गया? Yes, sir. Sir, thank you. Sir, one more question. या प्लीज। Sir, मैंने मीटिंग स्टार्टिंग से अटेंड नहीं की थी, so आप what is the full name of the app? Only LinkedIn or LinkedIn Learning? LinkedIn, that's LinkedIn. Let me show you again. LINKED, LinkedIn. That's it. LinkedIn. Go there, you will see the first thing, linkedin.com, LinkedIn India. Click on the link. The next thing appears is my profile. I know. तो मेरी profile दिखा देगा शायद. Yeah, because I've already logged in. So wait, let me log it out. Let me log out. Sign out option is there. I have signed out from LinkedIn. Remember and sign out because I am not remembering the password. Yeah, so this is the page which you will see. Let me show you again. Let me do the process again. LinkedIn. I want first type LinkedIn, go to LinkedIn India. The first ever link will be the link of the that will be the actual link. All right. Yeah, welcome to a professional community. Now what do you want? Are you searching for a job, find a person you know, or learn a new skill? So there are lots of things here. All right, profile option. Yeah,
ज्वाइन नाउ, साइन इन, दीज टू ऑप्शंस जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था। साइन इन उन लोगों को करना है जो कि ऑलरेडी हैं, ज्वाइन नाउ उनको करना है जिनकी प्रोफाइल नहीं बनी हुई, to make the most of a professional life। अब आपको कैसे साइन इन करना है, ओ सॉरी, या ईमेल दो अपना, फोन नंबर दो, बट सॉरी ईमेल दो, फोन नंबर दो या पासवर्ड डालो अपना यहाँ पे। देन नॉर्मली अगर आपको अपने गूगल अकाउंट से ज्वाइन करना है तो आप गूगल से भी कर सकते, लाइक गूगल पे क्लिक करा एंड देन यू हैव योर आईडीज, लाइक वत्सल लुनावत मेरा ऑफिशियल जीमेल आईडी, दिस इज माय ब्रदर्स, दिस इज द कंपनीज अकाउंट। सो आपको लगता है कि जैसे मेरा इसका स्पेंसर डिड का है, मैंने इसमें पासवर्ड डाला जो भी था, एंड देन आई विल बी नेक्स्ट, जो कि पासवर्ड गलत है, ऑलराइट। सो ऐसे आप गूगल से कनेक्ट कर सकते हो, ऑलराइट। Thank you, sir. ग्रेट। सर मत बोला यार, यू कैन कॉल मी वत्सल, आई एम जस्ट a year senior, that's it। So anyone, किसी और कुछ questions आ रहे हैं आपके माइंड में कि यार और कुछ बताओ, या कोई डाउट आ रहा है? Anyone? सर एक क्वेश्चन है सर लिंक्डइन पे उन्हीं लोगों को अकाउंट बनाना चाहिए जिनके पास स्किल्स हो, क्या ऐसा है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं है ऐसा, बिल्कुल भी नहीं है। आप अच्छा एक बात बताओ, क्या ऐसा कभी होता है कि आप अच्छा जिम गए हो आप कभी? नावेद जिम गए हो आप कभी? यस सर। तो जिम में क्या ऐसा होता है कि एक्सरसाइज करने के बाद ही प्रोटीन लेते हो, या एक्सरसाइज करते टाइम भी प्रोटीन लेते हो ना? यस सर। तो ये भी उस तरीके का प्रोसेस है कि आप स्किल साइड बाय साइड गेन करते रहो और लिंक्डइन पे भी एक्टिव रहो। लिंक्डइन में अपनी प्रोफाइल बनाओ। एक्टिव कैसे ना, सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है कि एक्टिव कैसे रहो यार। अगर आप स्किल्स गेन कर रहे हो ना, तो आपके दिमाग में बहुत सारे थॉट्स आ रहे होंगे, अच्छा ये भी कर लूं, अच्छा ये भी तो, अच्छा कोई बंदा ऐसा भी तो सोच सकता था। आपने उसको शेयर कर दिया लिंक्डइन पे, कैसे? लेट मी शो यू अगेन। हाउ मेनी ऑफ यू नो मिस्टर कुणाल शाह? कोई जानता है कुणाल शाह को? एनीवन? आप में से कोई भी नहीं जानता हु इज कुणाल शाह? सर कुणाल शाह और करण शाह। कुणाल शाह, कुणाल। नो सर। अच्छा ये ऐप किसको पता है? एक सेकेंड। इस ऐप का नाम सुना है? ऐड तो देखा ही होगा। यस सर। क्रेड, भाई कुणाल शाह इज द फाउंडर ऑफ क्रेड। He founded Cred. So what I am about to tell is that आपके मन में कोई थॉट आ रहा है, आपको शेयर करना है, आप लिंक्डइन पे शेयर कर दो। इसके तरीके से आपकी एंगेजमेंट और अच्छी रहेगी। प्लस लिंक्डइन पे आप लोगों से कनेक्ट करो। आपने उनको रिक्वेस्ट भेजी, रिक्वेस्ट भेजने के बाद मैसेजेस एक्सचेंज करो यार, टेक्स्ट करो एक दूसरे को कि यार मैं इस प्रोफाइल, आप क्या काम करते हो, अच्छा ऐसा काम करते हो, मैं भी इस प्रोफाइल में वर्क करता हूँ, लाइक टू बिल्ड अ कनेक्शन विद यू। लाइक I'm gonna show you कि जैसे मेरे को भी रिक्वेस्ट आया था, ओहो प्लीज पिक द करेक्ट इमेज वे अप। ओके just give me a second, I don't know what's it doing. Oh, that's verification. My brain is not working right now. Just give me a second. Yeah, I've already logged out. What I was telling, can you please tell me? I forgot. Yeah. So what people do is they simply share their thoughts and they can connect on LinkedIn messages. You will see many people messaging you like hello hello the name of the person, hello I can say hello Akanksha D. Hello Akanksha D. I feel that there is a mutual connection between us, between your page and my page, and I think that you and I can have a profitable business if you want to, for the business connection, or we can help out each other in finding jobs, or I want to connect with you because
there can be n number of reasons for connection. This is what I'm talking about. This is how you can engage on LinkedIn. All right, please open LinkedIn once a day and start making connections and start sending requests at least to 10 to 15 people every day. Start with 10 to 15 every day. Any more questions? Yes, Vatsal, I hope you have shared your contact to the students. Yes, sir. Yeah. Okay. So in case if anybody want to ask anything more on any of the aspect, you can contact Vatsal as well. Okay. So I hope you have enjoyed the session, and I have enjoyed the session, and a few things I have picked up from there that I don't know how to do it. Right. So thank you, Vatsal, for engaging our students on this. Thank Okay. you, sir. Sir, can I Yeah. tell you one more thing? Actually, find out this that if any day you want to recruit people for DME faculty, or you want to like recommend someone, you can go for LinkedIn. Do you know this about LinkedIn? Yeah, which one? Come again? LinkedIn Recruiter. This is a website from LinkedIn. Here you can connect. You will act as a recruiter, and you can recruit people very easily. This is the most easiest way Okay. to recruit. Nice, nice. Definitely. Okay, then I think we should now end up the meeting for the day. Sure. Yeah, sir. Vasil? Yes, I guess no one has now more doubts. Okay. Two of them asked me their doubts. Okay, thank you, Vatsal. Then Most okay, we welcome, will sir. plan some another day if required. Sure, sir. Yes. Okay. Thank you, sir. Okay. Thanks everyone for joining today. Okay. Take care. Bye bye. Bye, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Okay, beta. Bye.